क्या लग रही है। Hello everyone. Good evening. I hope you're having a good evening. Hello everyone. So I hope you are having a good evening. And obviously I hope everyone is excited about this live stream because we have recently achieved new all-time high in Indian markets, respectively in Nifty 50. So आज की लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के व्यूज़ क्या हो सकते हैं एंड हमारे पास जितने भी स्टॉक क्वेरीज हैं उसको हम जितनी हो सके उतनी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये स्ट्रीम में एंड थोड़ा बहुत हम अपने एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई बेसिक इंडिकेटर्स जो हमारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं उसको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं टू योर ऑप्टिमम setup strategy, right? So okay, on that note, let's start it. And hello everyone. Hello. Hi Jayeshi. Hi Girdarji. I hope we can start first with Nifty, and then we can go on watching for stocks as in when we get the comments. Okay. So just wait for a couple of seconds. I will just update it on the Telegram too so that people can join in. Just give me a minute. Okay. So okay. So we are done and we can just go on replicating the same. So if you see on this particular chart, if we talk about Nifty first, right? So if you see this particular chart of Nifty, you will see we have recently touched new all-time highs, correct? That is today, above 20,000. High made is 20,800. And we saw Bank Nifty lagging a little bit, but we hope it can cover up if Nifty sustains the momentum, right? So first, if we see the Nifty chart, what do we see in terms of first, let's go to weekly and weekly, or let's go to monthly time frame just to check overall journal view of the market. Okay, so if you see, we have a very basic structure of Nifty. If you just have a look, and what is that? Check. See, from the COVID lows to the first all-time high made, we are just following an higher high, lower low formations. Okay, and currently we're standing at new all-time highs, that is nearly around 20,000. So technically, if you see, Nifty was stronger when we compare it in terms of Bank Nifty,
okay, but the scenario kept on changing week on week, and currently the scenario for Nifty versus Bank Nifty is Nifty 50 is much more stronger, as it is very evident on the chart. And talking about Bank Nifty, you can see a good momentum in PSU sectors, and private sectors were like lagging, or they were just jittering a bit, but now they are doing good in terms of overall, we can say, overall structural structural positions. Okay, so ठीक है. सो अभी अगर हम निफ्टी 50 का पहले चार्ट देखें तो निफ्टी 50 का आपको बहुत ही इजी चार्ट दिख जाएगा, राइट. हमें एक रिसेंटली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है. अगर आप देखेंगे ये रिसेंट दिस पर्टिकुलर हायर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर, अगर आप इसको देखें, फर्स्ट इट कुडंट क्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग. अब देखिए स्विंग हाई को पिछली बार वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, एंड देयर वी गॉट अ रिजेक्शन, and then again we came halfway towards this particular structure. उसके बाद आप देखिए 50%, and then this was the candle which saw a breakout. Okay, so technically अगर आप देखेंगे तो positionally we were good in terms of taking the index upside, right? And ठीक है, ये तो हो गई बेसिक्स की बात फॉर निफ्टी. क्विकली हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं. सो बैंक निफ्टी पे अगर आप आके देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा. बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इट्स अ कंप्लीट हायर हायर लोअर लो स्ट्रक्चर. जस्ट हैव अ लुक हियर. सी, okay, and nearly we are about to hit new all-time highs in Bank Nifty too. So basically tomorrow being Tuesday we have Fin Nifty expiry, and then on Wednesday we have Bank Nifty ka expiry, because from now Bank Nifty is scheduled to have its expiry on Wednesday. So in these particular 2 days we can expect some good momentum in Bank Nifty, especially in PSU banks, and then moving on then to private banks, right? So coming on to that particular note, अगर हम इस पे अब बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि we took a break at this particular point for the very first time, made a new all time high. इधर निफ्टी ने लैग किया था. अगर आप ये प्रीवियस स्ट्रक्चर देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी ने इस जगह पे लैग किया था. ये देखिए, राइट, निफ्टी ने इधर लैग किया था while बैंक निफ्टी was very strong. Let's just compare it. Okay, just a minute, 1 month. Right, okay. So अगर आप इसको ये इधर देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ने जिस वक्त हमें एक अच्छा सा मूवमेंट दिया था, दैट इज समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. जस्ट अ मिनट, ये देखिए, राइट, 1 अक्टूबर. कैन यू सी द प्रोसेस? सो अगर आप इसको अब देखेंगे तो बैंक निफ्टी वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, whereas निफ्टी इफ यू सी इट जस्ट वेंट ऑन. उसने सिर्फ एक ORS पैटर्न बना दिया था इस जगह पे. अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो आपको कुछ दिख जाएगा इस तरह, इस तरीके से ORS पैटर्न, राइट, परफेक्टली मार्क्ड. एंड सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर शॉर्टफॉल आया था. अब सिनेरियो काइंड ऑफ रिवर्सिंग है, ठीक है. अगर अभी आप देखें तो इधर निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर एंड बैंक निफ्टी इज कैचिंग अप. सो टेक्निकली दिस इज गुड. स्ट्रक्चरली ये अच्छी पोजीशन पे है, बिकॉज निफ्टी अगर स्ट्रॉन्गर है सो डेफिनेटली अभी इसमें आईटी चलना बाकी है. देन यू हैव योर मेटल सेक्टर्स टू ब्लास्ट इन. आपके पीएसई सेक्टर्स हैं, राइट. तो उसको एक कंट्रोल मिल सकता है टूवर्ड्स योर, आप बोल सकते हैं कि आपके जो बेसिस सपोर्ट्स रहेंगे वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं अगर मोमेंटम सस्टेन करता है तो.
राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, अगर हम पिवट्स के बारे में, जैसे कि हम पिवट्स के बारे में ही बात करते हैं, देन अगर हम इसका एक मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच देखना चाहे तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, वो बहुत ही ईजी रहेगा। ये देखिए, सो जैसे कि आपको पता है, अभी हमने अपना एक इंडिकेटर निकाला था, दैट इज पिवटबॉस एमटीएफ पार्टिसिपेंट डिटेक्टर। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो हाउ हाउ इज दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर ओवरऑल। ठीक है, तो उसको हम इनेबल करते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहले हम एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो जस्ट स्विचिंग ऑफ वीकली एंड डेली एंड क्वार्टरली, मंथली एंड ईयरली टाइम फ्रेम हमारे पास ऑन है, एंड लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम so that things are easy now and let's all clear off all the screens। ठीक है, फाइन, सो हैव अ लुक नाउ। अगर आप देखें तो निफ्टी अभी करंटली किधर किधर पोजीशनड है या किधर किस तरीके से पोजीशनड है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। so if you see clearly, Nifty is very well placed in terms of initiative buyers। अगर आप देखें तो we saw a momentum coming from previous एक्सपायरी, प्रीवियस वीक्स एक्सपायरी। अगर आप देखें तो उस पूरे वीक का जो 80% मूव था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे देखने मिला रहेगा। सो अगर इस तरीके से अगर आप चलेंगे या इस तरीके से आप समझेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर होगी कि इनिशिएटिव बायर्स जो किक इन हुए थे प्रीवियस वीक के, दे वर किक्ड इन ऑन वेंसडे, लगभग वेंसडे को किक किए थे, राइट। एंड सिमिलरली आपको वो कंटिन्यूएशन ये चार्ट पे दिख रहा होगा। अब बेसिकली अगर हम एक वीकली सॉरी एक एम टाइम फ्रेम की बात करना चाहें, तो हमारे पास अभी करंटली वी हैव, अगर हम इसको मार्क करके देखें तो करंटली हमारे पास क्या क्या है। करंटली वी हैव ईयरली टाइम फ्रेम्स, ठीक है, ईयरली पिवट टाइम फ्रेम है, क्वार्टरली पिवट टाइम फ्रेम है और मंथली पिवट टाइम फ्रेम है, राइट। इन सबके इनिशिएटिव लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, दैट इज इनिशिएटिव ईयरली बायर्स, इनिशिएटिव क्वार्टरली बायर्स, इनिशिएटिव H4 बायर्स, ठीक है, दैट इज इनिशिएटिव मंथली बायर्स। सो अगर आप एक चीज़ अब देखेंगे इसमें, तो आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है कि हमने मंथली सेटअप पे मंथली जीपीजेड ब्रीच किया है एंड देन ऑन वी आर रिसीविंग अ शॉर्ट कवरिंग इन निफ्टी। सो अब ये सेम चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। सो एक चीज़ आपको काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपके जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है उस पर आप मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली उसको आप रख सकते हो ना डेली टाइम फ्रेम, सो दैट आपका व्यूज़ अच्छे रहें। ठीक है, मतलब आपका जो ओवरऑल चार्ट व्यू रहेगा वो क्लटर भी नहीं रहेगा एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट दिखेगा आपको। प्रेजेंस ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब कौन से टाइम पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच पार्टिसिपेंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और इंडेक्स, यू कैन ईजिली कम टू नो। सो अगर हम इधर देखें तो अभी इधर सिनेरियो क्या बन रहा है, इधर अगर आप करंटली देखेंगे तो आप होवर कीजिए ये लेबल के ऊपर एंड आपको लेबल, उसका नाम एंड लेवल भी मिल जाएगा। खाली आपको अपना कर्सर जाके जाके उस लेबल के ऊपर पॉइंट आउट कर देना या उसके उसके ऊपर होवर करना, करेक्ट। एंड देन इजीली आपको आपका ये जो भी आपको लेवल चाहिए, नाम चाहिए, लेवल का प्राइस टैग चाहिए, सब आपको दिख जाएगा। सो कमिंग टू व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, अगर आप निफ्टी के बारे में देखें तो निफ्टी में मंथली H4 बायर्स हैव ट्रैप्ड इन क्वार्टरली रिस्पॉन्सिव सेलर्स, ठीक है, एंड देयरफॉर जितने भी सेलर्स थे दैट इज अराउंड 19,700, ठीक है। इधर आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी निफ्टी पिछले पिछले मंथ में जब भी निफ्टी 19,500 क्रॉस करना चाह रहा था, ओके, समवेयर अराउंड 19,550 पकड़ लेते हैं बिकॉज इट वाज समवेयर अराउंड 19,500 से 600, सो 550 का लेवल पकड़ लेते हैं। सो अगर आप एक चीज़ देखें तो अगस्त के मंथ में
राइट। जब भी निफ्टी इस लेवल के पास आया है तभी तभी एक सेल ऑफ आपको दिखा है, राइट। एंड सिमिलरली हमारे पास उस मंथ में, अगस्त के मंथ में कोई बायर्स नहीं थे, फ्रेश बायर्स नहीं थे, ओनली एंड ओनली सेलर्स, करेक्ट। सो अगर आपको इस टर्म्स में अगर हम देखने जाएं तो उस टर्म्स में अगर आप देखें तो इस मंथ के लिए हमको एक फ्रेश बायर्स मिले इन टर्म्स ऑफ मंथली H4 लेवल्स, दैट इज समवेयर अराउंड 19,550-600, करेक्ट। तो ये हमारा अभी एक सॉलिड बेस की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज इधर से सेलिंग आई थी एंड वहीं से सेलर्स ट्रैप होके एक शॉर्ट कवरिंग, आपको लगातार 3 दिन शॉर्ट कवरिंग देखने मिल गई है, राइट फ्रॉम थर्सडे, फ्राइडे एंड 3 days कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग। ऐसा सिनेरियो आपको पहले भी देखने मिल चुका है निफ्टी में, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चार्ट पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ऐसा कुछ सिनेरियो इधर भी हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो इधर भी हुआ है, ऐसा कुछ सिनेरियो इधर भी हुआ है, एंड दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। ऐसे सिनेरियो सेलिंग में भी आए हैं, करेक्ट। सो आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर दिख रही होगी कि आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको ये रन अवे गैप्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें आपके मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एंड बेसिकली एक ऐसे लेवल से बाइंग या सेलिंग आती है जहाँ पे एक्टिविटी, वॉल्यूम एक्टिविटी या फिर पार्टिसिपेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है। सो आपको इस जगह पे दिख रहा होगा, इस जगह के जो सेलर्स थे, अब वही सेम लेवल आपको ये मंथ के लिए बाइंग में दिख रहा होगा, दैट इज मंथली H4 लेवल समवेयर अराउंड 19,560 या 570। तो ये टेक्निकली अभी ये बायर्स काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे जब तक आपको वापस से एक फ्रेश वीकली सेलर नहीं मिलता, बिकॉज मंथली में तो हमें पता है बायर है, क्वार्टरली में भी अभी तक बायर है, बायर सेलर्स ट्रैप हुए हैं, तो क्वार्टरली के भी हम बायर्स ही पकड़ेंगे, बट क्वार्टरली मोर स्ट्रांग हो जाएगा जब हम अबव 20,230 क्रॉस कर जाएं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें भी रिस्पॉन्सिव बायर्स है। सो करेंटली हमारे पास अगर हम खाली 3 टाइम फ्रेम को जो हम देख रहे हैं पकड़ के चले तो हमारे पास क्या 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 कंक्लूजन आता है निफ्टी में। करेंटली हमारे पास मंथली बायर्स हैं, ठीक है। क्वार्टरली में क्या हुआ है, क्वार्टरली में भी रिस्पॉन्सिव बायर्स हैं फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम हु हैव ट्रैप्ड क्वार्टरली रिस्पॉन्सिव सेलर्स, ठीक है, जो कि आपको Q3 में दिख रहा है। एंड ईयरली में क्या हो रहा है, ईयरली में ऑलरेडी आपको H3 के जितने भी रिस्पॉन्सिव सेलर्स थे वो सारे ट्रैप होते हुए दिख जाएंगे, करेक्ट। सो इससे अगर आप एक चीज़ कंक्लूड करना चाहते हैं तो एक चीज़ हम इधर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है निफ्टी के लिए वो हो सकता है 20,140 या 20,227। ये दो ऐसे टारगेट हैं जहाँ पे निफ्टी आके एक हॉल्ट ले सकता है। ये हम खाली अभी ये 3 पिवट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जब हम इसके नीचे जाएंगे, दैट इज चेकिंग वीकली और डेली, तो हम समझेंगे कि इसको हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हम MTF देखना चाहें तो MTF में वेरी वेरी क्लियर दैट निफ्टी इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन हैंड्स ऑफ मंथली इनिशिएटिव बायर्स, ओके। अब सिमिलरली अगर आपको ये चीज़ समझ आई है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो हम अब जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी से जाने से पहले आपको एक फिन निफ्टी का भी व्यू दे देते हैं, ताकि कल आपको पता है कि हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। सो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी का क्विकली अगर हम एक व्यू लेना चाहें तो आपको क्या दिख रहा है फिन निफ्टी में होता हुआ। फिन निफ्टी में काफ़ी क्लियर और वेरी लाउड चार्ट, ये आप देखिए, ईयरली सेलर्स प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल ऑफ, राइट, इधर से आपका फर्स्ट सेल ऑफ आया था, उसके बाद इधर एक बेस बनाया इसने, करेक्ट, एक बेस बना के वापस ऊपर गया, वापस एक सेल ऑफ मिला, कहाँ से, आपको क्वार्टरली रिस्पॉन्सिव सेलर्स से, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एक बेस बना के वापस ऊपर आके करंटली वी हैव मंथली इनिशिएटिव बायर्स इन एक्शन, ये करंट सिनेरियो है। सो कल एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फिन निफ्टी के लिए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बता रहा हूँ कि कल अगर आपको ये चीज़, ये लेवल बेसिकली
अगर आपको ये लेवल मिलता है दैट इज 20,270 और राउंड ऑफ 20,300, ठीक है, 20,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ में, देन वी आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैप yearly initiative yearly responsive sellers that is somewhere around 20,350 and move towards this particular level that is 20,600. सो फिन निफ्टी में कल एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस स्टॉक, फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स। तो आप इन सब स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हैं। बेसिकली आपको माइक्रो फाइनेंस, एनबीएफसीज, ये सारे स्टॉक्स आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं कल। दे आर एक्सपेक्टेड टू शो यू सम गुड मोमेंटम टुमारो, so keep a check on that particular thing. MFSL, PAYL, Bajaj Finance, Finserv, MFSL, ओके, ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, LNT फाइनेंस, ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे मोमेंटम दिखा सकते हैं। और बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके फिन निफ्टी के, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट। सो आई होप आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये चार्ट, एंड दिस चार्ट इज वेरी वेरी लाउड एंड वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। सो हाँ जी, चार्ट देख लेते हैं एक बार। सुदीप जी says hi Mukul, good boss. Hi. Hello Sudeep ji, how are you? I hope you're having a good evening. Arvind Kumar, hi. Hello, hello Arvind ji, how are you? Meetu ji, how are you? Buffering, I don't know, it may be due to connection at your side, because I can see it running perfectly from my side, and it's also stream भी low latency पे ही है, so basically buffering नहीं होना चाहिए। नमस्ते मुकुल जी, नमस्ते दिलीप जी, कैसे हैं? मीतू जी says what is the use of high? What is the use of high, low and close in the MTF indicator? Is it not required for forming the broader view? देखिए, HLC जो है, HLC का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। आपका पिवट पॉइंट किससे बनता है? अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपका पिवट पॉइंट जितने भी आप अब ये देख रहे हैं, ये सब किससे बने? ये सब सिर्फ 3 लेवल से बने, दैट इज योर एच, एल एंड सी, हाई, लो एंड क्लोज। सो बेसिकली अगर हम बात करने जाएं, तो आपके पिवट पॉइंट्स जो हैं वो 3 बेसिक लेवल से बनते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। आपके जो पिवट पॉइंट है वो बनते हैं एच, एल एंड सी। ये सारे पिवट पॉइंट जितने भी आप चार्ट पे देख रहे हैं, सबके सब इन 3 बेसिक प्राइस लेवल से बने हैं, दैट इज हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपका हाई, लो एंड क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अलग तरीके से वर्क करता है इफ़ यू ओनली गो बाय HLC मेथड, ठीक है। HLC मेथड में आपको फिर इन सब की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप नॉर्मली एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली पोजीशन कर सकते हैं कि आपके पिवट पॉइंट्स किधर हो सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं एक वीडियो लाने का विच विल मेक यू पोजिशनली गुड, स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर, ठीक है। वो आपको एक अच्छा सा बेस प्रोवाइड करेगा टू फाइंड आउट एनी गिवन टाइम फ्रेम का, मतलब कोई भी टाइम फ्रेम होने तो आप उसका पिवट स्ट्रक्चर, पिवट कॉम्पोजिशन, सब कुछ HLC के फॉर्मेट में ही उसको डिस्क्राइब एंड डिटर्मिन कर सकते हैं विदाउट आस्किंग और गोइंग टू एनीवन एल्स। सो दिस इज what we are planning and I hope this can be a benchmark। ये जो हमारा वीडियो होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई एक बेंचमार्क होगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितने भी ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेथड्स है प्लॉट करने के, डिमांड सप्लाई, ये सब, ठीक है। वी एक्सपेक्ट दैट, बट वी होप कि आपके पास एक ऐसे लॉजिकल लेवल्स होने चाहिए जिनके प्राइस पॉइंट भी आपको जस्टिफाई करें। मतलब हम वही लेवल्स ड्रॉ करेंगे जो हमें प्राइस बता रहा है टेक्निकली, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। सो HLC के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो एक उसके लिए हम अलग से वीडियो प्लान कर रहे हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू मीतू जी, एंड ठीक है, इसके बारे में हम उसी वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम अभी थोड़ा फ्लो में चलने देते हैं। सुदीप जी सेज यस गुड, या गुड। हिरेन भाई, हाँ
गुड इवनिंग हिरेन भाई, हाउ आर यू? हेमा किरण कुमार, हेलो हेमा जी, हाउ आर यू? नमस्ते जी। सो लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। सो बैंक निफ्टी पे अगर हम आएंगे, सो बैंक निफ्टी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये एक ऐसे से पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, या एक नॉट रिस्क टू रिवॉर्ड टेक्निकली, आपको एक अच्छा प्राइस मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, बिकॉज एज वी नो निफ्टी हैज taken out the all-time high, so bank nifty can go out and go out and charge out for the two coming days, that is Tuesday and Wednesday। ठीक है, तो ट्यूसडे वेंसडे में अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे वेंसडे में जैसा कि मैंने बताया फिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड वेंसडे को आपकी बैंक निफ्टी है। सो बैंक निफ्टी को करंटली हम देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। आप देखिए, जीपीजेड मंथली जीपीजेड ब्रेक किया है, ब्रीच किया है एंड उसके बाद शॉर्ट कवरिंग। ओके, बट इधर एक चीज देखने वाली है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज ऑन फ्राइडे, ठीक है, निफ्टी में मंथली H4 क्रॉस किया था और वो सस्टेन हुआ था। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया था। इफ यू सी वेरी वेरी क्लोजली, ये देखिए क्लोजली, बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड इट क्लोज बिलो H4, मंथली H4। एंड आज अगर आप देखें तो इट जस्ट गॉट कैरिड अवे। अब इसका प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, राइट? वाई? बिकॉज इफ वी सी दिस इन टर्म्स ऑफ लोअर टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, वीकली पिवट टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखेगी। तो फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए एंड हम इसको जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम इसको वापस रिकॉल करेंगे कि एग्जैक्टली इधर हो क्या रहा है। करेक्ट। नाउ बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, अगर आप देखें MTF का चार्ट जो है वो काफ़ी क्लियर टर्म्स में आपको दिख रहा होगा, वेयर यू कैन सी अ वेरी लाउड चार्ट दैट इज नियर योर ईयरली H3। अभी हमने फिन निफ्टी का चार्ट देखा है जहाँ पे आपको एक सेलिंग आते हुए दिख रही थी ईयरली H3 से इन ऑल बैंक एंड फिनेंशियल के स्टॉक्स जो थे। एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर पोजिशनिंग बन रही है, राइट? कुणाल चंद्राकर, हेलो हेलो कुणाल जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। ओके, सो इधर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ईयरली H3 में आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो बेसिकली यही साल है। सो वी आर सेट। सो फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो हमारा ऑल टाइम हाई नियर टू दिस, ये जो हमारा पूरा एरिया था वो कुछ इधर का ही एरिया आपको दिख रहा था जो हमने मंथली चार्ट में देखा था फर्स्ट। नाउ अब उसका ब्रेक देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ब्रेक दिख रहा होगा, राइट? सो अभी हम इसको थोड़ा और डीप में अगर देखना चाहें तो आप एक चीज देख सकते हैं। अब कल जो हम मंथली H4 के प्लेयर्स जो अभी अभी ताज़ा घुसे हैं, दैट इज अराउंड 45,200, ठीक है, ये लोग कल ट्राई करेंगे, कल एंड इवन वेंसडे को ट्राई करेंगे टू टेक आउट दीज पर्टिकुलर सेलर्स, responsive sellers, that is first at 45,900 and second जो रहेंगे 46,285, that is 46,230, ठीक है, या 46,300, सॉरी 230 बोल रहा हूँ, 46,300। इसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें, दैट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग टू सी। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप बहुत ही क्लियरली इसको देखें तो हमारे पास दो चीज़ें, क्या है वो देखते हैं। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कंपेयर करेंगे अभी। इधर लगाते हैं हम निफ्टी का चार्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसमें से बता देंगे। ओके,
ओके, ठीक है। सो वी आर सेट ऑन दिस ऑल्सो। ये देखिए आ गया ये। अब इसमें एक चीज अगर आप सॉरी निफ्टी लगाना होगा, ठीक है। सो इधर हमारे पास निफ्टी का भी चार्ट आ चुका है। लेट्स क्लियर आउट द ड्रॉइंग्स। परफेक्ट। तो अभी आपको साइड बाय साइड बैंक निफ्टी भी दिख रहा होगा एंड निफ्टी का भी चार्ट दिख रहा होगा, करेक्ट। सो अभी आप एक चीज देखिए इधर कि निफ्टी के पास टेरिटरी ब्लू स्काई की है। ब्लू स्काई मीन्स निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो इधर कुछ है, और ऑल टाइम हाई के बाद हमारे पास अपसाइड लेवल से टूवर्ड्स 20,140, राइट। हमारे पास 20,140 के अपर लेवल से। सो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि निफ्टी के पास एक फ्री हैंड है मोमेंटम का, दैट इज अराउंड 150 पॉइंट्स का एक फ्री हैंड, या आप बोल सकते हैं एक बफर है बिफोर इट इज जॉइंड बाय ईयरली H4 प्लेयर्स। बट इधर एक ट्विस्ट आएगा, ठीक है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। सो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर निफ्टी ये पॉइंट पे आता है, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे एंड वेंसडे मोमेंटम अच्छा रहता है, फिर निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम देता है एंड इट टेक्स बैंक निफ्टी टूवर्ड्स क्वार्टरली H3, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये लोग ट्रैप होंगे बाय होम, मंथली H4, ठीक है। अगर ये लोग ट्रैप हुए तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि एक गुड 400 से अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का मूव देखने मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में, ठीक है। दैट इज अराउंड अराउंड यू कैन से 600 टू 750 पॉइंट्स का विद इन दिस 2 days, दैट इज व्हाट इज एट लीस्ट, ठीक है। एट लीस्ट सेंस में अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स देखने मिल सकते हैं जहाँ पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। सो अभी एक चीज अगर आपको इधर देखी होगी, निफ्टी में हमारे पास निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया, वेर आज बैंक निफ्टी में हमारे पास ईयरली H3 के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, दे आर स्टिल वेरी वेरी सॉलिड। अगर आप देखेंगे मैंने इसको मार्क कर दिया विद द ब्लू लाइन। सो रेफरेंस में आप ध्यान रखिएगा कि ब्लू लाइन इज ईयरली H3। अब अगर एक चीज हम देखें तो बैंक निफ्टी अगर इधर तक भी आता है, दैट इज 46,300, ओके। सो इसके ऊपर सस्टेन होना एंड बाद में निफ्टी का 20,150 के ऊपर सस्टेन होना, दैट मीन्स लेट्स से कि बैंक निफ्टी शॉर्ट कवर करके 46,300 के लेवल तक आता है, राउंड ऑफ में लेवल लिख रहा हूँ, ओके, समवेयर अराउंड दिस लेवल, ठीक है। ईयरली H3 इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ओके, 46,300 and then you come across this particular thing, that is आपका निफ्टी का लेवल। तो निफ्टी का क्लोजेस्ट लेवल क्या है अभी के लिए, दैट इज ईयरली H4 20,150। ये भी हम एक राउंड ऑफ लेवल पकड़ लेंगे जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग द एनालिसिस। सो इसको हम पकड़ लेते हैं 20,150। सो नाउ व्हाट्स द प्लान। अब व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान। सो नेक्स्ट प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप देखेंगे निफ्टी में एक फ्री हैंड, जैसा कि हमने बताया निफ्टी में और अभी एक 150 पॉइंट्स का फ्री हैंड है बिकॉज हम 20,000 के लगभग घूम रहे हैं, और बैंक निफ्टी में अभी एक मोमेंटम का स्कोप बन सकता है समवेयर अराउंड 600 टू 750 पॉइंट्स का, ठीक है। सो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कैन बी अग्रेसिव इन दीज पर्टिकुलर 2 days सपोर्टेड बाय फिन निफ्टी, ठीक है। और बैंक निफ्टी इधर आने के बाद दैट इज समवेयर हियर, बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से मूव करने के बाद वापस से ट्रैप मतलब सेल ऑफ जोन में आ सकता है टूवर्ड्स योर पेमा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि निफ्टी का जो एक सर्टेन ऑफ मूव चल रहा है, दैट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट 7 डेज का जो अप मूव चल रहा है निफ्टी में, वो उसको एक सपोर्टिव हैंड मिल सकता है टू कम ओवर दिस पर्टिकुलर लेवल
मतलब सपोर्ट हम देखेंगे अभी वीकली पिवट टाइम फ्रेम पे। सो इसको एक सपोर्ट मिल सकता है या फिर एक हेल्दी डिप मिल सकता है टू फर्दर गो अप्स ऑन द अपसाइड। ठीक है, सो आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर निफ्टी इस तरीके से बैंक निफ्टी इस तरीके से बर्ताव कर रहा है तो निफ्टी को एक हेल्दी करेक्शन करने का, हेल्दी डिप लेने का मौका मिल सकता है, राइट। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ ऐसा सेल ऑफ आते दिख सकता है। सी टेक्निकली स्ट्रक्चर के हिसाब से आई कैन सी दिस हैपनिंग, बट ये सिर्फ एक व्यू है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। ये आगे किस तरीके से शेप करता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हो सकता है कि निफ्टी कैन बी स्ट्रेट अवे जॉइंट इन बाय ईयरली H4 एंड देन क्वार्टरली H4 एंड वो फिर और ऊपर जा रहा है, एंड बैंक निफ्टी भी ये सारे प्लेयर्स को ट्रैप करके, दैट इज द लॉन्ग टर्म ईयरली सेलर्स को ट्रैप करके सीधा QH4 को ज्वाइन कर रहा है एंड दे बोथ आर गोइंग अप। बट व्हाट आई कैन सी इज समथिंग लाइक दिस। ये एक डिप लेगा इधर से, ठीक है, सेलर्स एक वापस प्रेशर लगाएंगे बिकॉज निफ्टी को एक हेल्दी डिप चाहिए रहेगा, एंड देन बोथ कैन गो टूवर्ड्स क्वार्टरली H4। फिर ये सिंक में चल सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट। सो इस तरीके से आपको कुछ प्राइस एक्शन होते दिख सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फॉर दिस कमिंग वीक एंड ऑल्सो फॉर द फॉलोइंग वीक। ओके, सो इस तरीके से अगर आप चलेंगे सो आपको एक फ्रेश लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड अगर ऐसा कुछ आपको मार्केट में होते हुए दिख रहा है देन यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। सो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो हम क्विकली नीचे चले जाते हैं टूवर्ड्स आवर लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस नाउ। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो हम अपना जो नेक्स्ट मूव की सीरीज निकालते थे तो कुछ हम इस तरीके से एनालिसिस करते थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो अभी ये काफ़ी इजी हो गया बिकॉज वी हैव दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ठीक है, जो आपको लेवल्स प्लॉट करने की डॉटेड लाइन के चार्ट्स आपको दिखते थे मेरे, ठीक है, पिवट ऑप्शन चार्ट्स। सो नाउ इट इज़ मच मोर क्लीनर एंड मच मोर कन्वीनियंट। तो अब हम नीचे आते हैं टूवर्ड्स 1 आवर, 1 आवर या फिर 30 मिनट्स। आई प्रेफर 30 मिनट्स, बट यू कैन प्रेफर एनी टाइम फ्रेम यू विश टू। ठीक है, सो अब लेट्स गो ऑन एंड स्विच आवर वीकली एंड डेली। So now you can see what exactly happened in this particular week। ये वीक के स्टार्ट में क्या हुआ है, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आज डेली में बैंक निफ्टी ने क्या किया। पहले मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ फिर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहले हम निफ्टी देखेंगे फिर बैंक निफ्टी देखेंगे। सो निफ्टी में अगर आप एक चीज़ देखें तो निफ्टी आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। सो एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर दिखेगी इधर, जस्ट ओके समवन इज टेलिंग बफरिंग हो रहा है। सो बफरिंग के लिए आई गेस आप हल्का सा स्क्रॉल की मतलब होवर कीजिए अपनी स्क्रीन पे, यूट्यूब स्क्रीन पे, और नीचे जहाँ पे लाइव लिखा है ना, साइड लेफ्ट में लाइव लिखा होगा, उस पर एक बार टैप कर दीजिए। तो अगर आपके लाइव में रेड डॉट ब्लिंक हो रहा है या रेड डॉट स्टेबल है देन आपको वो चीज़ बफर होते हुए नहीं दिखेगी, वरना आपको कुछ सेकेंड्स का डिले दिखेगा ड्यू टू योर नेट कनेक्शन। ठीक है, सो आई होप दैट वाज वेरी क्लियर। सो हम वापस आते हैं। सो देखिए निफ्टी में क्या चला है आज। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इट वाज वेरी मच क्लियर कि मोमेंटम वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। सीधा हम खुले हैं एंड क्लोज किए हैं फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 30 मिनट कैंडल अबव डेली H4, दैट इज योर 19,897, दैट इज समवेयर अराउंड 19,900 का लेवल, स्ट्रेट, right, straight opening above that and closing somewhere around there only। so आपको डोजी कैंडल दिखा है फर्स्ट 30 मिनट कैंडल आपको डोजी मिला है। व्हाट डज दैट मीन? ये डोजी कैंडल का मतलब क्या हो सकता है, क्या कोई बता सकता है? सिंपली एक डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि द फोर्स इज इक्वल फ्रॉम बोथ द बायर्स एंड सेलर्स। तो इसका सिंपल सा अगर हम मीनिंग देखने जाएं या सिंपल सा एक उच्चारण देखने जाए इस चीज़ का, तो आपको पता चलेगा कि
एक ये लेवल था दैट इज समवेयर अराउंड 19,920, जहाँ तक बायर्स गए, फिर सेलर्स ने आके उनको वापस नीचे खींचा, एंड सिमिलरली सेलर्स प्रीवियस प्रीवियस डे क्लोज तक आए दैट इज समवेयर अराउंड 19,860, एंड उधर से बायर्स ने वापस मार्केट को ऊपर खींचा. सो टेक्निकली क्लोज किधर हो रहा है? टेक्निकली क्लोज इज विद अ वेरी वेरी नैरो बॉडी, या ऑलमोस्ट नील सॉर्ट ऑफ बॉडी परसेंटेज. तो इसका क्लियर सा मतलब क्या हुआ कि बायर एंड सेलर का जो जो भी स्ट्रेंथ था उस वक्त, वो काफी काफी बैलेंस्ड आउट था. तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड आईबी कंडीशन. मैं एक रफली व्यू बता रहा हूँ, ठीक है. इसके कॉन्सेप्ट्स काफी अलग हैं, एंड इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप मनी जोन्स के थ्रू देखें तो मनी जोन्स के थ्रू बहुत ही अलग आपको वो चीज़ दिखेगी. मनी जोन्स का भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा विद आर इंडिकेटर, जो कि मनी जोन इंडिकेटर हमारा है वो डेवलपमेंट फेज में है. मेरे पास जो अभी चार्ट में लगा हुआ है वो हमारा जो पुराना मनी मनी जोन इंडिकेटर था जो बैन हुआ था, मेरे पास वही है, ठीक है. बट मनी जोन इंडिकेटर इज कमिंग वेरी वेरी सून, एंड इट वुड बी वन ऑफ अ हेल ऑफ इंडिकेटर, ठीक है. वो एक ऐसा इंडिकेटर होगा जो मतलब नहीं होगा ट्रेडिंग व्यू पे, एंड बेसिकली आपको बहुत हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ योर एनालिस्ट पार्ट, ठीक है. ट्रेडिंग तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा. सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो निफ्टी में इट वॉज वेरी मच क्लियर दैट डेली H4 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल रही है, तो डेफिनेटली बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग. एंड हु आर दोज बायर्स? Those are daily H4, that is daily initiative buyers, right? So technically अगर आप इसको देखने जाएंगे, so इसका जो मोमेंटम है वो काफी काफी एंटिसिपेटेड था, that is towards upside. Now coming to the weekly first stop of resistance जो इसका था वो किधर है आप देख सकते हैं, that is somewhere around weekly H3, that is 19,940. अब इधर आप देख सकते हैं काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने में लगा होगा ये एक रेंज में, that is somewhere around weekly H3, right? ये देखिए इधर आपको कंसोलिडेशन देखने मिला एंड फाइनली एक ब्रेक आया इन द सेकेंड हाफ. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग? अगर आप ये चीज़ को देख के समझें एक बात, तो इधर बायर्स हैं, अक्यूमुलेशन हुआ एंड देन ब्रेकआउट. आप बोलेंगे कि लाइव मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा अक्यूमुलेशन, ठीक है. सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. अगर आप इसको बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखेंगे ना तो आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर होते हुए दिखेगी. एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि बैंक निफ्टी का एक ऐसा जो आपको जो कैंडल दिखाया था मैंने फ्राइडे का जो क्लोज हुआ था बिलो मंथली H4, उसका सिग्निफिकेंस अभी डेली में कैसे आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है. अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बिकॉज एज आई सेड बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो अगर हम बैंक निफ्टी को अब देखना चाहें, जस्ट अ सेकेंड, या सो ये देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ काफ़ी ब्यूटिफुली होते हुए दिख रही होगी आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, दैट इज ओआरएस पैटर्न्स. आप एक चीज पे अगर ध्यान दें तो यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. पिछले 3 टाइम से, ठीक है, एज निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग एंड बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू ड्रैग निफ्टी ऑन द डाउन साइड. तो आप एक चीज होते हुए देख रहे हैं, ये देखिए, सॉरी दिस इज वेरी बैड, ये देखिए ओआरएस पैटर्न, अगेन ओआरएस पैटर्न, अगेन ओआरएस पैटर्न. बट ये तीसरा वाला जो ओआरएस पैटर्न है जो अभी मैंने रिसेंटली बनाया, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ था समवेयर हियर, ओके. दिस इज स्पेशल व्हाई? बिकॉज आपको जो भी मोमेंटम मिला है रिगार्डिंग इन निफ्टी और बैंक निफ्टी और द ओवरऑल मार्केट, वो समवेयर was related at this particular point. How? Let's see. सो अगर आप एक ये चीज देखेंगे ओआरएस कैंडल फॉर्म होते हुए, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? फर्स्ट कैंडल जो था निफ्टी में था एक डोजी कैंडल. सिमिलरली बैंक निफ्टी में यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ सेलर्स, दैट इज डेली रिस्पॉन्सिव सेलर्स. काफी क्लियर है चार्ट, राइट? देन निफ्टी में क्या होता है? निफ्टी में जैसा कि आपने देखा, ये देखिए निफ्टी का भी हम लगा देते 30 मिनट.
राइट। इधर भी हम ले आते हैं डेली एंड वीकली। तो ना आप साइड बाय साइड उसको रख के कंपेयर कर सकते हैं, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को। ठीक है, सो ये देखिए, अब अगर आज का हम प्रोग्रेशन डिस्कस करने जाएं तो आज का प्रोग्रेशन आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा रहेगा। जस्ट चलिए, ठीक है। सो ये देखिए, फर्स्ट कैंडल निफ्टी में कौन सा है, क्विकली अगेन डोजी कैंडल है। फर्स्ट कैंडल बैंक निफ्टी में कौन सा है, सेलर्स कैंडल है। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बैंक निफ्टी में इमीडिएटली डेली एच फोर प्लेयर्स आते हैं क्योंकि निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। एंड साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में वो कैंडल किस तरीके से प्रोजेक्ट होता है, बैंक निफ्टी में वो कैंडल प्रोजेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ओआरएस पैटर्न, राइट। जस्ट अ मिनट, द चार्ट्स आर लोडिंग। या चार्ट सीम्स टू बी लोडिंग, ओके लोडेड। सो बहुत ही क्लियर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, सेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड एंड दैट इज क्लियरली बीइंग डिपिक्टेड बाय ओआरएस पैटर्न। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो भी प्रोग्रेशन आपने देखा होगा वो एक काफी क्लासिक प्राइस एक्शन के तरीके में वो आपको फॉर्म होते दिख रहा है एट अ स्क्रैप ऑफ सेलर्स एंड साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ इन निफ्टी इज टेकिंग बैंक निफ्टी अलोंग। सो आपको दिखा होगा कि बैंक निफ्टी आज, व्हाई वाज बैंक निफ्टी लैगिंग डिस्पाइट निफ्टी हिटिंग, निफ्टी ट्राइंग टू हिट न्यू ऑल टाइम हाइस। ठीक है, और कौन निफ्टी को नीचे खींच रहा था, दैट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट। आप ये चीज देख सकते हैं, इधर काफी काफी क्लियर है। अब नाउ इफ यू सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोग्रेशन, अब देखिए इधर भी हम आते हैं 1 आवर में। सो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न, सो हम 1 आवर पे भी सेम चीज होते हुए देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस मोमेंटम। सो एक चीज काफी क्लियर थी इधर कि निफ्टी में इट वाज इनिशिएटिव बायर्स, ठीक है, डेली इनिशिएटिव बायर्स, whereas बैंक निफ्टी हैज डेली इनिशिएट रिस्पॉन्सिव सेलर्स। एंड सेकेंड हाफ में क्या होता है, सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी वाज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ responsive sellers of daily pivot time frame, and simultaneously Nifty was trying to find additional momentum as due to the presence of daily H4, that is daily initiative players. Very clear on this particular point, right? What happens in second half is much more interesting. अब सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे दोनों सिंक में आते हैं, दैट इज नियर टू वीकली रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स। व्हाट हैपेंस इन निफ्टी, निफ्टी में वही सेम चीज कंसोलिडेशन में बदलती है। it waits for bank nifty to provide a clear runway for it. तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही बैंक निफ्टी की डेली एज फोर क्रॉस करता है, साइमल्टेनियसली उसको एक पुश मिलता है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग प्लस एनबीएफसी इंडेक्स से, एंड साइमल्टेनियसली निफ्टी गेट्स अ पुश फ्रॉम रिलायंस एंड अदानी ग्रुप। आपने अदानी पोर्ट्स देखा होगा, अदानी एंटिटी देखा होगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। अदानी एंटिटी क्लोज टू 4%, अदानी पोर्ट्स क्लोज टू 7%। ठीक है, तो वो सब की मदद से, एंड प्लस रिलायंस अप मूव 1%, आईटी वाज गुड, ऑटो वाज ओके बुलिश, मेटल्स वर डूइंग गुड, एफएमसीजी भी न्यूट्रल था। सो ऑल ऑफ दैट बीइंग आपको एक क्लासिक प्राइस एक्शन प्रोवाइड करता है। सो अभी आई होप आपको ये दिन का जो प्रोग्रेशन था वो काफ़ी क्लियर होगा कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है और हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, कौन स्ट्रांग था, कौन वीक था, आपको क्लासिकली एक डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा इस चीज़ का, राइट। सो नाउ इफ दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर, अब हम चलते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि हर किसी को एनालिसिस करना रहता है कि आपका नेक्स्ट डे का प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, या नेक्स्ट वीक का क्या हो सकता है, नेक्स्ट मंथ का क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट डे का एक सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करके देखते हैं कि आप कैसे देख सकते हो, कैसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो कमिंग टू फर्स्ट निफ्टी,
तो निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना है, सेशन टाइम फ्रेम डेली, नेक्स्ट पिवट, नेक्स्ट सेशन पिवट पे यस, एंड पिवट पॉइंट्स पे यस, ये सब पे यस कर देना, ठीक है, चारों पे। पार्ट 2 का है, ये आप सर्च कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये सारे पे सर्च कर लो, क्लिक कर लो, एंड यू विल गेट ऑल दोज प्रोग्रेशन फॉर द अपकमिंग डे। सो अब हमें इसमें से डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम डेली को ऑफ कर देते हैं, वीकली को रहने देंगे। एंड सिमिलरली हमको इसमें भी पार्ट 2 चाहिए, सो हम सर्च कर लेते हैं पिवट बॉस, सॉरी, पिवट बॉस पार्ट 2, ओके। एंड सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग्स हम इधर भी कर देंगे, डेली यस 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 यस, एवरीथिंग इज चेक्ड ऑन, ठीक है। नाउ लेट्स वेट फॉर गेटिंग लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी टू, ओके, यस CPR ट्रेल्स आर ऑन, परफेक्ट। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी में यू हैव अ बुलिश जीपीजेड, ठीक है, एंड निफ्टी में भी हमारे पास क्या है, निफ्टी में भी हमारे पास बुलिश जीपीजेड है। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक आउट हियर इज, अब अगर आप देख सकते हैं, काफी काफी अच्छे सेंस में आपको इधर दिख रहा होगा कि, ओके जस्ट अ सेकेंड, समवन इज नजिंग मी अगेन एंड अगेन, निशांत परिहार, एक बार लाइव चैट देख लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो सर, so can you share how I select stocks for long term hold? Okay, हम लेते हैं अभी क्वेश्चन, just give me a minute, हम वापस आते हैं सारे क्वेश्चंस पे। एक बार हम खाली अपना CPR कंप्लीट कर लें फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है, CPR एनालिसिस फॉर नेक्स्ट डे। तो एज यू कैन सी बोथ हैव बुलिश GPZ फॉर टुमारो, ठीक है, बट एक चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग दिखेगी, जहां पे हमारा सेलर्स ट्रैप हुए हैं, ठीक है, उसी जगह पे हमारे बुलिश GPZ बने हैं। व्हाट डज दैट मीन? कल जब तक ये GPZ ब्रीच नहीं होते हैं, वी विल कॉन्स्टेंटली बी इन एन अप ट्रेंड, मतलब हमारे पास जो अप ट्रेंड का मूव या मोमेंटम चालू है वो स्ट्रांग ही रहेगा जब तक दोनों इंडाइसेस में GPZ ब्रीच नहीं होता है, या फिर वीकली H3 लेवल्स दोनों में ब्रीच नहीं होते हैं। तो इसका बेस क्या है कल के लिए फॉर निफ्टी, दैट इज 19,940-50, ठीक है, एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी क्या बेस रहेगा, 45,500, right? So I hope these things are very very clear to you, and how we can progress for the day is, आप देख सकते हैं कि हमारा मोमेंटम अगर कुछ, कल हम गैप अप खुलते हैं समवेयर अबव प्रीवियस डे हाई इन बैंक निफ्टी, सो हमारा प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से रह सकता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम कुछ इस तरीके से आ सकते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आता है तो, या मार्केट में अगर कुछ भी मोमेंटम नहीं रहता है तो, दिस कैन बी अ सिनेरियो, सिमिलरली फॉर निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। इसके ऊपर खुल रहे हैं, देन रिवर्सल कैमरा से हम इस तरीके पे आ सकते हैं। अगर कल का दिन साइडवेज रहना चाहता है तो कुछ इस तरीके से हमारा व्यू हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकेंड सिनेरियो अगर हम ऊपर खुल रहे हैं, सो सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा, समवॉट लाइक दिस, हम इसको ब्रीच करेंगे, सपोर्ट लेंगे, इधर भी आ सकते हैं, HLC पे क्लोज पे भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, और इधर भी सपोर्ट ले सकता है, तो दोनों में से जहां पे भी सपोर्ट ले इट वुड बी हेल्दी। अगर ये ऊपर ले रहा है दैट इज अबव और नियर डेली H3, ठीक है, तो इट वुड बी हेल्दियर। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इट वुड बी जस्ट अ डिप टूवर्ड्स पेमा, करेक्ट, पेमा पे डिप होगा और उसके बाद वापस ऊपर जाने की संभावनाएं रहेंगी। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। तो लेट्स से हम इधर आके एक सपोर्ट लेते हैं, फिर हम डेली H4 पे आएंगे विच वुड बी जॉइंड इन बाय वीकली H4, एंड सिमिलरली क्या होगा, वी विल गो समवेयर अराउंड टू ईयरली Y3, याद है आपको ये लेवल 45,000 45,300, ठीक है, सॉरी 46,300 का लेवल, तो ये वाला जो लेवल था वो था हमारा आई गेस QH3,
Just let me check it once. Bank Nifty. While it loads, we will just check this things out. ठीक है, तो आपको इस तरीके का कुछ प्रोग्रेशन दिख सकता है, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी में भी सेम तरीके का प्रोग्रेशन आपको आते हुए दिख सकता है. दैट इज इफ यू ओपन समवेयर हियर तो इसको ब्रीच करेगा, ठीक है, एंड देन निफ्टी वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर फर्स्ट बिकॉज आपको एक फ्री हैंड मिल रहा है. सो निफ्टी कुछ इस तरीके से जा सकता है टूवर्ड्स ईयरली H4 लेवल, ठीक है, और बैंक निफ्टी में ये जो लेवल, हाँ देखिए QH3. ओके, सो दिस इज QH3. तो इधर से सेलर्स ट्रैप होंगे, रिस्पॉन्सिव सेलर्स with the help of whom, daily initiative buyers, weekly initiative buyers. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मूव आपको आते दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी. सो इट्स इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर टुमारो. सो अगर शॉर्ट कवरिंग हमको ऐसा कुछ मूव आते दिख रहा है ना बैंक निफ्टी में, डू नॉट मिस दिस पर्टिकुलर मूव. ठीक है, भले आपका स्टॉप लॉस, आप देखिए आपको पता तो है अगर मार्केट इधर भी डिप ले रहा है ना, इधर भी डिप ले रहा है, सो यू कैन शॉर्ट दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शंस. ठीक है, बिकॉज जब तक ये GPZ रीच नहीं होंगे कल के लिए, वी विल बी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड अपसाइड ओनली. इट्स वेरी मच क्लियर ऑन द चार्ट, वेरी वेरी मच क्लियर ऑन द चार्ट. ठीक है, सो आई होप दिस वॉज अ गुड ब्रीफ फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है, क्या होगा कल, सबकी प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस कर ली है. ठीक है, सो आप क्विकली हम एक क्वेश्चन सेशन ले लेते हैं. एंड अभी तक अगर आपने स्ट्रीम लाइक नहीं है तो कर दो यार, सिर्फ 2 लाइक्स है, इट मोटिवेट्स अस आल्सो. ओके, या समवन इज टेलिंग आपके व्यूज कम है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच भी चल रहा है. यार राइट राइट राइट. सी आई डोंट वॉच क्रिकेट बिकॉज आई एम मच मोर इनटू फुटबॉल. मैं क्रिकेट कभी कभी IPL हो गया तो, या फिर कोई इंडिया पाकिस्तान तो ऑब्वियसली सब देखते हैं, बट इट्स गुड. ओके, सो लेट्स रीड द लाइव चैट्स, एंड अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज है प्लीज टाइप योर क्वेरीज इन द लाइव चैट. आई विल रीड देम वन बाय वन एंड वी विल सॉल्व इट क्विकली ऑन दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम. ठीक है, कुछ एनालिसिस है, स्टॉक एनालिसिस हैं, आपके पास कुछ पिवट रिलेटेड क्वेरीज हैं, सेटअप रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी है सब आने दो. ओके, हम रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर वी विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग. Let's quickly see what's happening. Send me your questions, guys. तो चलिए लाइव स्ट्रीम, लाइव चार्ट देखते हैं. निशांत परिहार, ओके, he says hello sir. Hello Nishant ji, good evening, how are you? I hope you're doing good. So can you share how can I select stocks for long term hold, and do you have any shares in your list as of now for buying? See, this is not a proper question. Why, I will tell you. ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी कॉमन दिखता होगा मार्केट में. क्या, कौन से स्टॉक्स है, स्टॉक का नाम, ये वो. सी, इन्वेस्टिंग इज नॉट लाइक आपने आज पूछा और आपको हाथों हाथ कुछ मिल गया. ठीक है, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू पेशेंस. ओके, एंड पेशेंस ऑफ होल्डिंग द गुड स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज. सो आई गेस आप अगर ट्रेडिंग के हिसाब से पूछेंगे तो ठीक है, हम फिर भी 1 दिन का व्यू या 2 दिन का व्यू दे सकते हैं, या एटलीस्ट 1 वीक का. बट इन्वेस्टिंग, इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स टू लुक अपॉन वेरियस फैक्टर्स. बिकॉज इन्वेस्टिंग में अगर आप स्मॉल कैपिटल डाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है. आप खुद ही सोचिए, अगर आप इन्वेस्टिंग 1 लाख से कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स विल यू जनरेट. द स्टॉक माइट हिट यूसी, स्टॉक यूसी मार रहा है, 10% ऊपर भाग गया वो, या कैश स्टॉक से वो 20% ऊपर भाग गए, आपको प्रॉफिट कितना है ओवरऑल इफ यू डिप्लॉय 1 लाख, 20,000. ब्रोकरेज सब हटा दीजिए, LT शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब हटा 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 के 2-2,500 और, सो नियरली अराउंड 18%. सो इन्वेस्टिंग में व्हाट आई फील इज यू शुड हैव अ गुड कॉर्पस फर्स्ट. सेकेंड, आपके पास एक
अल्टीमेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वेर यू कैन जस्ट कीप योर कैपिटल इन अ पर्टिकुलर, यू कैन से डाइवर्सिफाइड बास्केट, जहाँ पे आपको एक स्टॉक नहीं चल रहा है, सो यू कैन इजीली होल्ड डाउन टू इट विद अ टाइट स्टॉप लॉस. सेकेंड, अगर आपके पास एक स्टॉक नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि आपके बाकी दो स्टॉक चल जाएं, एंड दैट माइट गिव यू ओवरऑल गुड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो आपका जो क्वेश्चन है, हाउ कैन आई सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, सो उसका अभी हम एक वीकली बेसिस पे तो हम एक वेबिनार ग्रुप चला रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर. ठीक है, विद द एम टू बिल्ड फर्स्ट अ कम्युनिटी. सेकेंड, हमारा जो एम है टू ब्रिंग इन अ लॉजिकल बेस फॉर एवरीवन, ताकि वो उसको यूज़ कर सके इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल पिक्स, जो भी चीज़ है. ठीक है, सो वो हम कर रहे हैं, एंड उसका नेक्स्ट साइकिल अभी सितंबर में शुरू होगा. सो यू कैन वेट फॉर दैट. एंड अगर जर्नल फोकस में बात करें तो जर्नल फोकस में आप पिवट्स के थ्रू भी कर सकते हैं. देयर आर वेरियस सेटअप्स विच यू कैन पिक अप. एक होता है जो, फर्स्टली मैं आपको कहूँगा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस टाइप के बायर हैं, या किस टाइप के सेलर हैं, या किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट, पर्टिकुलरली एज एन इन्वेस्टर. क्या आप एक इनिशिएटिव बायर हैं, क्या मतलब आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग पसंद है, या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पसंद है, आपको बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पसंद है, या बाय ऑन डिप्स पसंद है, सेल ऑन राइस पसंद है, क्या पसंद है. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं क्विकली. जैसे कि आपको बाय ऑन डिप्स पसंद है, मतलब आपको ट्रेंड में ही रहना है, बट यू वांट टू प्ले सेफ, आपका रिस्क भी सेफ हो. ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी, चार टाइप स्ट्रैटेजी होती है: हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, low risk low reward, high risk sorry high risk low return, and low risk high return, sorry high risk low return. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बाय ऑन डिप्स कैटेगरी को देखना चाहें तो इट इज लो रिस्क लो रिटर्न. ठीक है, और अगर मोमेंटम में आए तो हाई रिटर्न. वो मैट्रिक्स बदल जाता है इफ यू कीप ऑन होल्डिंग दैट पर्टिकुलर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक. सो उसका एक मेथड क्या हो सकता है, उसका मेथड हो सकता है जस्ट यूज पेमा on a broader time frame, that is daily या फिर weekly, depending upon how your investment time frame is. ठीक है, अगर आप एक स्विंग प्लेयर हो तो डेली या डेली वीकली पे रहो. ठीक है, अगर आप एक पोजिशनल प्लेयर हो देन डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम वीकली एंड फॉर हायर टाइम फ्रेम गो ऑन टू मंथली. ठीक है, और सिर्फ एक ही इंडिकेटर आपको यूज आएगा उसमें, दैट इज पेमा. सिंपल एंड सोबर. पेमा पे डिप आए, आपको एक अच्छा सा पिवट कॉन्फ्रेंस दिखे, यू कैन जस्ट गो ऑन बाइंग विद अ डिफाइंड स्टॉप लॉस, एंड उसको आप ट्रेल कर सकते हो फॉर द गिवन नेक्स्ट पिवट पॉइंट एज योर टारगेट. ये मैंने काफ़ी एक बेसिक तरीका बताया, राइट? इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, बिकॉज पेमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ट्रेंड में ही रखता है, और आपको ट्रेंड के साथ ही बाइंग या सेलिंग करवाता है. दैट इज बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज. So you can easily target at least, I guess, somewhere around 7 to 10% per month, जो कि it's a very very good amount of return. Very good क्या, it's a fantastic amount of return. अगर आप 10% भी साथ महीने का बना पा रहे हैं ना, ओके, assuming assuming a net gross profit. So technically अगर आप उसको सिंपल कंपाउंडिंग के साथ देखें, या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ देखें, सो आपका एब्सोल्यूट या सिंपल रिटर्न्स ओवरऑल इज समवेयर अराउंड 120% फॉर अ ईयर. दैट इज समवेयर अराउंड 1.2x ऑफ अ कैपिटल. ठीक है, अज्यूमिंग दैट योर प्रिंसिपल इज ऑलवेज सेम. मैंने कंपाउंडिंग नहीं की है. अगर आपने जैसे 10 लाख डाला है, 10 लाख पे आपने 10% बनाया, so every time a principal remains same and a profit of 10,000 is calculated per month depending on that 10%. so आपका साल के अंत में कितना हो जाएगा? साल के अंत में वही चीज होगी आपकी 1,20,000. ओके, सॉरी 10,20,000, और आपका पर मंथ आएगा 1 लाख प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ 10 लाख. सो टेक्निकली आप बिफोर टैक्सेस आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो समवेयर नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है वो समवेयर अराउंड 120% का है.
एंड देन ऑन अगर आप उसमें टैक्सेस एंड सारे बहुत ब्रोकरेज वोकरेज डिडक्ट भी कर दो तो भी आपका आई गेस समवेयर अराउंड ग्रॉस प्रॉफिट बचता है 70 to 80%, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टैक्स ब्रैकेट यू आर फॉलोइंग। ठीक है, उससे ऊपर भी रह सकता है। सो टेक्निकली अगर आप इस चीज के साथ चलेंगे ना इन्वेस्टिंग में, देन ओनली यू कैन मेक मनी। हर दिन एक एड्रेनलिन रश लाना कि मेरे को हर दिन ट्रेड लेना है, हर दिन मेरे को अपना एक बड़ा कैपिटल पे एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए, पॉसिबल है, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड लॉयल टू योर सेटअप। आप कोई एक ही सेटअप पे काम कीजिए, पिवट नहीं तो कोई और सेटअप पकड़ लीजिए, बट उसी पे काम कीजिए जो आपको सूट कर रहा है। फर्स्ट, सेकंड आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ ये सेटअप ऐसा है जो मेरे को कॉन्स्टेंटली ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, या फिर ये एक ऐसा सेटअप है जो लाइव मार्केट में हो या ईओडी में हो। दिस सेटअप हेल्प्स मी टू फाइंड माई कंफर्ट जोन एंड फाइंड माई फुल यू कैन से आप बोल सकते हैं कनेक्शन। आपका पूरा कनेक्शन उस वो सेटअप के साथ बनता है। और सिंपल थंब रूल अगर आपको बताऊं, कोई भी चार्ट खोलिए 5 मिनट्स एंड सेट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स डेली टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। ठीक है, मैक्स लिमिट इज डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको एक रेंज दूँ तो 30 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक कोई भी एक टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिए, कोई भी स्टॉक का, एंड सेट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स। उस पर आपको जो सेटअप लगाना लगा लेना, डिमांड सप्लाई लगाना है वो तो मैन्युअली ड्राइंग होती है, तो इंडिकेटर जो भी लगाना है आप लगा लो। उसके साथ आपको जो अपनी स्टडी लगानी है, जो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मतलब जो कुछ भी आपको आता है सब करके देख लो 5 मिनट में। ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट होने के बाद अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू वो स्टॉक का नहीं बना पा रहे हो ना, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, रिमेंबर दिस। ठीक है, बट इधर हम बात कर रहे हैं सेटअप ढूंढने के लिए, तो उसका एक थंब रूल बता देता हूँ। सिंपल है, जितना भी जैसा कि मैंने कहा 30 मिनट से डेली डेली टाइम फ्रेम का कोई भी एक चार्ट खोल लो, कोई भी स्टॉक। ठीक है, उसमें से जाके आप आपकी जितनी लर्निंग्स है सब लगा दो, और फिर 5 मिनट खत्म होने के बाद देखना या एनालाइज करना ब्रेक करके एक एक मिनट में कि आप कौन से सेटअप के साथ कंफर्टेबल थे। आपका फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन जो वो चार्ट को देख के था वो क्या आया? सपोर्ट, डिमांड सप्लाई आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आया, प्राइस एक्शन आया, पिवट पॉइंट्स आया, आरएसआई के थ्रू आया, यू कैन से एडवांस प्राइस एक्शन के थ्रू आया, मतलब जो भी आपको सबसे पहले दिखा, दैट इज एग्जैक्टली what is an indication of your comfort level और your connectivity level। वो चीज आप ट्रायल एंड एरर करके बार बार देखिए, तो आपको डेफिनेटली आफ्टर आफ्टर मल्टीपल ट्रेडिंग सेशंस या मल्टीपल एनालिसिस सेशन, दैट इज समवेयर अराउंड, आप पकड़ लीजिए एक गुड एंड टाइटर रिजल्ट के लिए आई वुड सजेस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स तक ये ट्राई कीजिए। 2 वीक्स के बाद हर दिन उसको जर्नलाइज कीजिए एंड फिर देखिए कि आप कौन से कनेक्टिव आपकी कौन सी ऐसी सेटअप के साथ कनेक्ट बन रहा है जहाँ पे आप यू कैन रिड्यूस योर एनालिसिस टाइम। और एनालिसिस टाइम हमेशा 5 मिनट का टाइमर सेट करके रखना। ठीक है, सो ट्राई दिस एंड फर्स्ट चेक योर कनेक्टिविटी विद योर सेटअप। ऐसा नहीं है कि आप कल किसी और की स्ट्रीम पे गए या कल किसी और के चैनल पे गए, ठीक है, उधर आपने कुछ देख लिया, यू फाइंड अ गुड एमटीएम, यू फाइंड अ गुड, जनरली आज जितने भी यूट्यूब टेलीग्राम हैं सब एमटीएम के बेस पे ही चल रहा है। ठीक है, एनालिसिस पार्ट आई हार्डली फाइंड, मेरे को खुद को नहीं मिलता है, कभी मेरे को कुछ आगे डेवलपमेंट करना हो मेरे इसमें, सो आई डोंट फाइंड एनी गुड channels where I can go and check only on the analysis part. I'm not concerned with the MTM part, profits part, loss part. मुझे ये सब कर देखने का नहीं है, because I'm not a auditor or I'm not a balance sheet checker or a P&L checker. I am basically an analyst or basically a learner right now in the market alongside earning in the market. So basically I will go across to find some, you can say, someone who is talking sense और इस और someone जो हमें बता रहा है कि प्रोग्रेशन लेना है तो किस तरीके से लेना है।
ना कि सीधा अपना चार्ट खोल रहा है, अपना ट्रेड बता रहा है, लो भाई ऑर्डर बुक देख लो, एंट्री एग्जिट देख लो, स्टॉप लॉस देख लो। क्या फर्क पड़ेगा आप बताइए? व्हाट विल यू डू सीइंग द ऑर्डर बुक्स, P&L? आप क्या कर लोगे? हर दिन बैठ के क्या एंट्री एग्जिट मार्क करोगे, या देखते रहोगे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया? उसका करके हो गया, उसका प्रॉफिट बन गया, उसका लॉस हुआ, लॉस हो गया, बुक किया, निकल गया। द पॉइंट इज व्हाट वाज द आइडियल सिनेरियो, उसका व्यू क्या था, उसका सोचने का नजरिया कैसा था, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। समटाइम्स ना आपको रिजल्ट से ज्यादा आप कभी किसी को ओवरऑल देखते हैं, लाइक यू सी सम सेलिब्रिटी, सम आइकन इन ऑन ऑन नेशनल टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया, जो अचानक से अपीयर हो गया आउट ऑफ नोवेयर। ओके, यू आर फर्स्टली इम्प्रेस्ड बाय हिज अचीवमेंट्स, हिज उसकी पॉपुलैरिटी किस वजह से आई है, ठीक है, उसका सोशल अकाउंट मीडिया नंबर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऑल दैट मटेरियल स्टफ, ठीक है। बट नो, वेरी फ्यू पीपल, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे डिग इनटू द जर्नी। वो उनकी जर्नी पे जाते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, व्हाट ही फेस्ड, डिफिकल्टी क्या आए थे, सक्सेस टाइम्स में क्या हुआ था। उसके बाद इट गेट्स वायरल। सो इट इज़ वेरी वेरी common or very very you can say idealistic to watch out for the journey rather than achievements, because हर कोई सेम अचीवमेंट नहीं कर पाएगा, right? So you have to get a sense of what are you seeing around as a journey of that particular person. So keep that thing in mind, and इसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे इन जर्नल VCs, ठीक है? So coming, I hope it is very clear for you. Or coming to the question, do you have any shares in your list as of now? I personally have few stocks in my list, and the rest I will, जो है मैं खाली इसको रोल ओवर किया है. I have not taken any fresh positions except a few of the stocks last week. इस वीक में मैंने अभी तक कोई फ्रेश पोजीशन नहीं ली है, ठीक है, बट what I have I am actually rolling them because उसी में प्रॉफिट्स अच्छे हैं, so I will trail them, right? नोमन जी का मैसेज है, गुड इवनिंग नोमन जी, कैन द इंडिकेटर बी मॉडिफाइड टू हाईलाइट व्हेन इनसाइड रेंज पिवट अपीयर्स? इनसाइड पिवट रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इनसाइड सीपीआर? आई डिड नॉट गेट यू। इनसाइड रेंज पिवट, इनसाइड रेंज आप थोड़ा और ब्रीफिंग दीजिए। आप इनसाइड सीपीआर की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? सो उससे थोड़ा एक अच्छा कॉम्पोजिशन मिलेगा ऑफ योर क्वेश्चन. Girdharji says, so your view on the expose of various trader regarding verified PNL. Stay away from that trash. ये सब क्या देख रहे हो भाई? अपने ऊपर ध्यान दो, ये सब सोशल मीडिया पे चलता रहेगा. सी who are those? I have seen few of them, मतलब वो लोग, they are into each other. Some are new accounts, some are old accounts, ठीक है. वो लोग का, उन लोग को मिल रहा होगा कुछ ना कुछ एक्सपोज करके, दे आर डूइंग समथिंग गुड एज पर द सोसाइटी. बट आई फील, सी, आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, आप अपने मम्मी पापा को देखते होंगे, सब्जी लेने जाते हैं, वो 3 या 4 बार चेक करते हैं, ठीक है. इफ इट इज़ नॉट गुड दे डोंट टेक इट. ऐसा नहीं है कि आज घर में खाना बनाना है तो सब्जी लानी ही लानी है. दे माइट यूज वट एवर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर होम, उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, बट अगले दिन तक चला लेंगे, ताकि अगले दिन उनको कुछ फ्रेश स्टॉक मिल पाए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्सिव आपके किसी ने आपके गन पॉइंट पे आपको फोर्स किया है कि आप ये खरीद लो. सिमिलरली गोज विद द मेंटालिटी ऑफ रिटेलर्स. जैसा कि मैंने अभी कहा, एवरीवन इज बिहाइंड सीइंग द अचीवमेंट्स. सोशल मीडिया हैज मेड यू गेट बर्स्टेड इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है. मतलब आपको एक सर्कमफेरेंस में रखा है, ठीक है, जहां पे आप सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, आपको घटती हुई चीज देखनी ही नहीं है. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. यू सी, जैसे कि मार्केट फॉर एग्जांपल आज देख लीजिए,
आज व्यूअरशिप या एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा था all across the channels, news channels, telegram channels. Why? Because Nifty was going all time high, right? But जब निफ्टी गिर रहा था या जब निफ्टी साइडवेज चल रहा था, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी, एवरीथिंग वाज सबसाइडेड. व्हाई? बिकॉज पीपल लाइक टू सी समथिंग स्पाइसी, समथिंग, वो बोलते हैं ना, मसाला चाहिए हर चीज़ में. तो स्टॉक मार्केट में कब मिलेगा? या तो कोई न्यूज़ हो जिसमें कोई स्टॉक की बज रही हो, या फिर कोई न्यूज़ हो जिसमें स्टॉक मार्केट ही ऊपर जा रहा हो. तो लोग आएंगे, देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं. ठीक है. सो my simple view is, I'm not against anyone, but what I am, see, I am here to learn something. I'm not here to uh, come see others PNL. क्या मैं रिलायंस को अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या मैं जाके उनके ऑडिटर्स से पहले उनकी बैलेंस शीट मांगूंगा या आपका PNL दिखाओ भाई, आपका कितना, के लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आज मुझे रिलायंस का ट्रेड करना है, ठीक है, तो क्या मैं अपनी एनालिस्ट पे ध्यान दूं या डायरेक्टली जाके उनको मेल करूं कि सर प्लीज सेंड मी योर लास्ट वीक ऑर्डर बुक, आपके कितने इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर बुक दिखाइए, क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है, कितने आइटम सेल किए हैं, तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो मैं फिर जाके आज ट्रेड करूं. लॉजिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो कलेक्टिवली आपको क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए सबके पास मार्केट में एक ही इन्फॉर्मेशन, दैट इज रॉ प्राइस. वो प्राइस को लोग कैसे यूज कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सेटअप्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर हाईटेक इक्विपमेंट्स, वो दैट मैटर्स द मोस्ट. बट सबके पास एक ही रॉ मटेरियल आ रहा है. रिमेंबर, रिटेलर हो, FI हो, DI हो, प्रो, सबके पास सेम रॉ मटेरियल आता है, प्राइस. इसलिए आपने मार्केट में एक स्टीरियोटाइप मुहावरा सुना होगा, भाव भगवान से. तो दिस इज ट्रू बिकॉज सबके पास प्राइस ही तो आ रहा है. प्राइस को वो लोग कैसे तोड़ मरोड़ के अपने एनालिसिस में फिट कर रहे हैं, दैट इज वेयर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज डिफरेंशिएटेड. ठीक है. सो आई होप ये सब में भाई आप, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन गो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आप बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, सो आई इवन डोंट केयर बिकॉज आई एम हियर टू डू समथिंग good for the community and we are not here to discuss upon someone's PNL. होगा, मुझे नहीं लेना तो मैं नहीं लूंगा. ठीक है. If I'm convinced with him, I will buy it. And if it is not working out for me, it's my fault. Because किसी ने मुझे अपने पोस्ट नहीं किया था to buy it. I was the one who was carried away seeing the materialistic stuff. So, in fact, आपको इससे एक लेसन लेना चाहिए कि you were wrong in that particular part. सो थिंक अबाउट इट यार. आप लोग खुद से एक लेसन लेना सीख जाओ ना, सो यू विल नॉट फॉल फॉल फॉर ऑल दिस. और एक चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखती होगी, ये सब कंटेंट पे व्यूज ज़्यादा रहते हैं रादर देन गुड चैनल्स where the trader actually is providing some good analysis, some good insights. ठीक है. अगर हम एक मीम स्ट्रीम शुरू कर देना, the views would be like 10-20 times of what we are having right now. But that is of no point. ठीक है. आप मार्केट में पैसा कमाना आए हो कि मूवी देखना आए हो? कि लो भाई, टेक माई लॉस एंड let me watch a good movie, what is going on. You're not here to watch a movie, right? In terms of at the cost of your capital. So थोड़ा सोचिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है. प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड फिल्टर आउट द नॉइस, राइट. Aman Bharadwaj, good evening sir, how are you? Very poor network by my side, please upload this session. Yeah, this would be automatically uploaded. Okay. Anirudh ji, how are you? Will RSI affect Nifty movement as it is overbought? Okay, let's check. See, RSI will generally not do the justice here because जब एक स्टॉक या एक स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्लू स्काई में होता है, दैट इज नियर टू ऑल वीक हाई और 52 वीक हाई, तो RSI will
will remain over 70, will remain over 80, and still the stock or index will make a new all time high. और इधर तो index है, so you can think of it. ठीक है, आप RSI अगर देखना चाहते हैं तो RSI भी देख लेते हैं. Let's check it out quickly. So see, अगर मैं definitely अगर इसको देखना चाहूँ, so I can see a good hidden divergence as of now. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है. सो दिस पॉइंट इज दिस समवेयर लाइक. अगेन कम्स द सेम पार्ट. आपको एक पेमा की तरफ डिप आते हुए दिख सकता है, जैसा कि हमने फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन, दैट इज फॉर ट्यूसडे, जो अभी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर मैं इसका पेमा भी आपको चालू करके दिखा दूँ तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. सो अगर इसका डिप आता भी है, ओके, देन वी आर स्टिल अबव 60 और स्टिल अबव 70, तो वी आर स्टिल इन अ मोमेंटम. ओके, RSI इधर रह के भी ऊपर की तरफ काम कर सकता है, नॉट एन इशू. या फिर एक कल हो सकता है कि ओपनिंग नीचे हो जाए, उससे क्या होगा, एज RSI वर्क्स ऑन क्लोज, तो आपको RSI में एक डिप मिल जाएगा नीचे की तरफ, एंड इट वुड बी रेडी फॉर अ फ्रेश अपसाइड. तो प्राइस ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड होता है व्हेन द स्टॉक्स आर इन ब्लू स्काई टेरिटरी, और इधर तो इंडेक्स है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ डिप टुवर्ड्स पेमा ओनली. पेमा टूटेगा एंड इफ वी गेट सम डाइवर्जेंस, ठीक है, पेमा स्क्वीज या फिर पेमा की तरफ, मतलब लो इंटेंसिटी पेमा की तरफ अगर आपको एक डिप आते हुए दिखे, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग. अदरवाइज इट इज नॉट. वी आर इन एन अप ट्रेंड. ठीक है, सो आई होप यू कैन फोकस ऑन दैट. ओवरबॉट ओवरसोल्ड होने से कुछ नहीं होता है. A stock can still make new 52-week high, or it can go on making 52-week high, despite the RSI being above 70, even sometimes above 80, 90 also. The momentum has to be seen in terms of fresh sellers. So आपके fresh sellers किधर मिलेंगे आपको? In terms of daily H3 या फिर वीकली H3. तो वीकली H3 तो हमारे पास यही फ्रेश सेलर्स अभी तक हैं, 1940 फॉर निफ्टी. एंड ये देखिए बैंक निफ्टी में कौन है, जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में इट्स टूवर्ड्स 45,480. ठीक है, तो यही आपके वो सेलर्स, रिस्पॉन्सिव सेलर्स है जो एक डिप लाएंगे टूवर्ड्स योर लो इंटेंसिटी पे. ये जो आपका बैंड है वो है ऑफ हाई इंटेंसिटी पे, दैट इज 8, 13, 21. ओके, सो आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू. एक सेशन RSI पे भी रखेंगे, ओके, सो दैट आई ऑल्सो गेट समथिंग न्यू टू लर्न अबाउट. जो मेरे पास है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपके पास है वो आप बता देना. राइट, Deep P liked it, boss. Thank you. Give the why GPZ top part is light purple and bottom part is dark purple. अरे ये क्या क्वेश्चन हुआ? This is simple customization because I prefer to see it like that. सिंपल कस्टमाइजेशन है, मैंने लाइट और डार्क रखा है, हमारा थीम ही वैसा है, मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक मॉड्स. ओके, नथिंग एल्स. So Deep, discuss about Nifty IT. Nifty IT I have talked about many times, right? Almost I am talking about Nifty ITs on my VCs YouTube. जो लास्ट वीडियो बनाया था उस पर भी IT था, which was long time back. उसमें भी IT आपको दिख जाएगा. Accumulation of ITB specifically, या फिर mid cap ITs. Right now also IT is in a very good spot. ठीक है, why? Because see, first, technically we are entering into a festive season in India, right? And also where people will get more, you can say, used to their personal time and much more of a vacations. So everything would be on a fast pace, because let it be travel, stay, then
transportation, everything requires IT. And definitely if we see a good acceptance of the mega launch of iPhone 15 event series that is happening tomorrow, 12th of September. So we have to see how Apple is reacting and how it will respond collectively to Nasdaq also. So Nasdaq अभी भी एक stable journey पे चल रहा है and everything has shot up but IT hasn't. So अगर जैसा कि मैंने सिनेरियो बताया, अगर हमें ये वीक या अपकमिंग वीक में if we see Nifty taking a healthy dip towards PEMA, then IT can be watched out for again because IT overall is in a good momentum. अगर हम simply देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ CNX IT. Have a look. From somewhere here I was talking about. इधर गया डेली पे आते हैं. So if you will see from around, we are talking about IT from around this point. ये जब ब्रेक किया था इसके बाद से हम आईटी के बारे में देख रहे हैं एंड इवन आई हैव ITBs इन माय पोर्टफोलियो. ओके, फ्रॉम अराउंड 28.96 दैट इज डॉक्यूमेंटेड इन माय डिस्कशन रूम. तो उधर उधर हमारे पास वो सब डॉक्यूमेंटेड है रिगार्डिंग ITBs. ओके, सो इफ यू वांट टू चेक दिस थिंग आउट, अभी आप देखिए सिमिलरली क्या हो रहा है आईटी में. अगर हम क्विकली देख लें, सो बुलिश GPZ है, ठीक है, मंथली H4 बायर्स हैं आईटी में भी. एंड वेर आर द फ्रेश बायर्स हियर, दैट इज अराउंड 33,000 ऑल्सो. एंड आईटी अगर आप देखेंगे तो इट इज रिकवरिंग वेल एंड above this we can go for filling this gap. So IT is very you can say it's in a very good spot right now. ठीक है, अगर एक हेल्दी डिप आता है टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल दैट इज अराउंड मंथली H4, दिस कैन बी a good dip for further move on the upper side towards 34,000. ठीक है, तो rather than large cap, more value would be created in mid cap ITs. So आप उस तरीके से उसको देख सकते हैं. अब इसी स्ट्रक्चर पे अगेन द टर्म कम्स ईयरली H3. आपको पता है इधर ईयरली H3 का सिग्निफिकेंस क्या है. सो हैव अ गुड चेक ऑन IT चार्ट्स एंड आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए अपने चार्ट्स. एंड ऐसे आपका भी एक होमवर्क होगा सो दैट यू रिमेंबर दैट व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट वर द लेवल्स व्हिच यू हैड टू फॉलो. मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता सकता हूँ. स्टॉक्स आपको चाहिए सो आई एम ओपन टू सजेशंस ऑल्सो, एडवाइस ऑल्सो, फीडबैक्स ऑल्सो. ऑन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए एंड उस पर आप चार्ट्स भेजिए विद योर मार्किंग्स एंड वी कैन डिस्कस ओवर देयर. ठीक है, बिकॉज VC पे इतना बड़ा सेशन लेना इट वुड बी वेरी मच हेक्टिक, राइट. So coming back to what we were speaking about. Okay, so let's take next question, that is index. Okay, Sudeep ji, I hope that is answered. Sandeep Nayak ji, good evening Sandeep Nayak ji, how are you? Reliance next Nifty 50 का रैली लीड करेगा. अच्छा, सो रिलायंस जैसा कि मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था वीक ऑफ टाइटन्स. सो बेसिकली वी हैव रिलायंस इन अ गुड स्पॉट टू. Okay, Reliance if you see, you can see, आप मार्कआउट कर सकते हैं इजीली कि रिलायंस इज कमिंग आउट विद अ गुड अपसाइड. ठीक है, तो निफ्टी को ये भी सपोर्ट कर सकता है. सिमिलरली अगर आप देखें तो ईयरली H3 के लगभग ही ये व्हाट इज दिस निफ्टी 50 के सॉरी ईयरली H3 के लगभग ही ये प्राइस घूम रहा है. सो इफ weekly initiative buyers fail at this particular level again, which is actually a swap level now. अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा. ये देखिए, first time breach of this particular level, that is QH4, right. अब आप देखिए क्या हो रहा है, bounce, break, and again we are going for a fresh retest.
So अगर we have to go past a good resistance that is somewhere around 2480 से 2500, अगर ये लेवल क्रॉस करेगा then we can see good momentum towards मतलब इसके बाद तो आपके मंथली H4 बायर्स भी जुड़ जाएंगे which can again take Reliance towards a fresh rocket rally towards 2600, right? That is towards new all-time high, या new 52-week high firstly. So this area is very crucial to watch. अभी currently हमने क्या किया है, currently QH4 ने वापस से आपके मंथली रिस्पॉन्सिव सेलर्स को ट्रैप किया है, ठीक है, वीकली रिस्पॉन्सिव सेलर्स को ट्रैप किया है. So we need this particular traps to be joined in by weekly H4 and taken the major seller trap that is around yearly H3. ठीक है, तो आपको अभी डेली बायर्स पे भी फोकस करना है कि डेली बायर्स पे हमें DH4 बायर्स चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ रिलायंस. एंड हमारे डिस्कशन रूम में, जो हमारा वेबिनार रूम है, उधर हमारा एक व्यू भी बन रखा है, ठीक है, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग रिलायंस एंड निफ्टी टू एक्ट ऑपोजिट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वेन एवर रिलायंस इज कमिंग इन टू पिक्चर ना, वो दो चीज़ के लिए आता है. फर्स्ट, either to support the index when it is going weak after a good momentum, ठीक है, या वो क्रूशल सपोर्ट पे हो तभी रिलायंस को यूज किया जाता है टू जस्ट अपलिफ्ट द एंटायर मार्केट, राइट? बिकॉज रिलायंस जब चलना शुरू करता है तो टू न्यूट्रलाइज द मूवमेंट और द अप मूव ऑफ रिलायंस यू रिक्वायर अ आर्मी ऑफ स्टॉक, लिटरली आर्मी ऑफ स्टॉक टू क्रॉस इट डाउन, ठीक है. बट अभी सिनेरियोज आर डिफरेंट. The scenarios are different. Why? Because overall market momentum है, so we can see swift volatilities in couple of sectors taking place, and also we now have the super bull Adani also. So Adani stocks are also recovering. उसका मैंने एक पूरा टाइल चार्ट बना के रखा है, वो हम लास्ट में रखते हैं. So do stay tuned because this is very interesting. और आपको अदानी ग्रुप पे पूरा एक नटशेल में व्यू चाहिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. बट बस फर्स्ट लेट मी फिनिश द लाइव चैट, ओके, क्विकली. सो आई होप रिलायंस काफ़ी क्लियर होगा. मैंने ब्रॉडर ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को. यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ दिस, एंड जैसा कि मैंने कहा, द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप अ ट्रैक इज ऑन द डेली बायर्स या फिर डेली सेलर्स. डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक रखिए, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट इज हैपनिंग इन रिलायंस. ब्रॉडर व्यू मैंने आपको दे दिया है, राइट? वी नीड weekly H4 to come up, show up, that is somewhere around 2476, that is round off to 2480, जो आपके yearly H3 level चाहिए, yearly swap level है. इनको ट्रैप किया, then we can see a good short covering in Reliance, ठीक है. और वो short covering कौन लाएंगे, हर दिन स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, that is daily buyers, daily initiative buyers. इसलिए मैंने कहा कि daily chart पे ध्यान रखिएगा, it is very very important, okay. So moving on to next question, Nishant Parihar. Okay, he says, thanks Mukul sir for wonderful reply. Always welcome, bro. See, the thing is, question कैसा भी होना दो, ठीक है. You should never be afraid to ask a silly question also, because a student is never, देखो, student offend होगा ना, so it will never work out for him. Student can be as you can say as dumb as possible, चलता है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं सीखोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, और जब आप पूछ लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो आपको वैसे ही समझ आ जाती है, और जवाब मिलने के बाद पूरी, ठीक है. तो पूछो, कैसा भी क्वेश्चन हो पूछो, इट डजेंट मैटर. सिली हो, एक्सपर्ट हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, लीव इट टू द पब्लिक टू डिसाइड, ठीक है. इट इज इम्पॉर्टेंट what you have as a query or a question needs to be solved, because वो आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप ही उधर अटके रहोगे, भले सिली हो, क्या क्या फर्क पड़ता है. a student can be silly also at the same time, at the same point of time shameless also in asking questions. It doesn't matter, because it is where, or it is how he will get the solutions or the answers for his questions, so that matters, ठीक है.
So for which A Rajesh. Okay. Hi Rajesh ji, good evening. How are you? From which level responsive buyers pick up the stock? And from which level initiative buyers pick up the stock? ठीक है. So basically जैसा कि मैंने आपको बोला अभी स्ट्रीम में, basically what happens is H3 Camrela H3 level, ठीक है. I will just note it down for you all. So what happens is basically, oh sorry, it's my text box. Okay, so basically क्या होता है, CAM H3 levels, ठीक है, make it a thumb rule. CAM H3 और L3 ये तो पिवट बॉस के बेसिक्स हैं, ठीक है. you should be knowing all these things by now if you are following pivots. So these are generally what's happening now. Responsive sellers, buyers, ठीक है. And same way for CAM H4 and L4, ठीक है, they are initiative sellers or buyers. Sellers or buyers, right? So I hope this is very clear as a basic. So आपका question I think would be answered by this particular note only, ठीक है. तो ये आपके बेसिक लेवल्स होते हैं कैमरेला के, जहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर आर योर रिस्पॉन्सिव बायर्स एंड रिस्पॉन्सिव सेलर्स एज वेल एज इनिशिएटिव बायर्स, इनिशिएटिव सेलर्स. सिंपल एज दैट, ठीक है. इसके बाद आता है सीपीआर फॉर्मुलेशन. इसके बाद आता है आपका अगर हम एक फ्लो चार्ट देखें तो इसके बाद आता है what comes next is your CPR. चलिए फ्लो चार्ट बना ही देता हूँ मैं आज, ताकि आप लोगों को पता रहे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स योर CPR फॉर्मुलेशन. उसके अंदर क्या आता है, टाइप ऑफ CPR, ठीक है. CPR फॉर्मुलेशन. व्हाट कम्स नेक्स्ट इज योर CPR relation, CPR relationship, and the closest, जो सबसे नियरेस्ट रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रीवियस डे CPR का. सो उसको हम लिख सकते हैं 2 डे या फिर 2 वीक या फिर 2 मंथ्स एंड सो ऑन, ठीक है, एटसेट्रा एंड सो ऑन. यार लिख देते हैं and so on, right? So shit man, just a minute. Okay, and this is your CPR formulation, that is type of CPR. एक minute, just give me a minute. CPR formulation, that is type of CPR, ठीक है. ये हो गया आपका सेकेंड फ्लो चार्ट में सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड. सो दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन फ्लोज. ये आपका हो गया प्रोग्रेशन, राइट. इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं. और ये हो गया आपका बेसिक प्रोग्रेशन. बेसिक कोई भी स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको ये 3 चीज़ें बेसिकली चाहिए, करेक्ट. फर्स्ट इज योर कैम लेवल्स, कौन से आपके पार्टिसिपेंट है प्रेजेंट एट द गिवन CMP, जो आपको पिवट MTF इंडिकेटर से मालूम चल जाता है, जैसा कि अभी हम इतने टाइम से देख रहे हैं चार्ट्स पे, ठीक है. आपको बेसिकली पता चल जाएगा. सेकंड, उसके बाद जब आपको पता है कि फॉर्मुलेशन क्या है, तो आपको CPR फॉर्मुलेशन, टाइप ऑफ CPR. देखिए अब ये कैसे सेलर्स हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं, लेट्स से वी हैव अ CMP नियर टू CAM H4 L4,
ठीक है, तो इससे हमें पता क्या पड़ेगा, इससे हमें ये पता पड़ सकता है कि इनिशिएटिव बायस प्रेजेंट है, बट किस सेटअप पे प्रेजेंट है। ये ये जो बायर्स आए हैं वो क्या करना आए हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करना आए हैं, ठीक है, वोलेटिलिटी स्क्वीज से मोमेंटम लाने के लिए आए हैं, या फिर ट्रेंड रिवर्सल के लिए आए हैं। मतलब दीज आर फेक बाइंग ऑर्डर्स विच कैन जस्ट गो अप एंड प्रोसीड इन अ फॉर्म ऑफ फेक आउट। तीन पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व करता है सीपीआर फॉर्मुलेशन, दैट इज टाइप ऑफ सीपीआर। जीपीजेड होंगे तो आपको पता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए आए हैं, अगर जीपीजेड टूटा तो रिवर्सल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म रिवर्सल या लॉन्ग टर्म रिवर्सल डिपेंडिंग ऑन द पिवट रिलेशन या फिर पिवट टाइम फ्रेम। फिर सबसे नीचे आता है आपका सीपीआर रिलेशन। ये सब पता करने के बाद आपको ये पता करना है कि जीपीजेड बना है, नैरो सीपीआर बना है फॉर एग्जांपल, तो उसका ट्रेंड, कौन से ट्रेंड में बायर या सेलर आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीपीजेड में अगर इनिशिएटिव बायर आया है और अगर उसका फॉर्मुलेशन है, जैसे या उसका रिलेशनशिप है 2 डे या 2 वीक का, लेट्स से असेंडिंग सीपीआर, ओके, या हायर सीपीआर, तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन क्या बनेगा वन लाइन में, सिंपल सा इसका कंक्लूजन बनेगा कि द बायर्स आर कमिंग इन फॉर अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो होता है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, और कभी भी आपको एमटीएफ एनालिसिस करना हो, जो कि मैंने अभी स्ट्रीम के स्टार्ट में बताया था कैसे कर सकते हैं, उसमें वैसे 3 चीज़ें आप एक बेस फैक्टर बना के रखिए, इसको नोट कर लीजिए, या जब अपलोड होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। जब भी आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना है ना, या फ्लो पता करना है क्या चल रहा है, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना बस। यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू ड्यूरिंग लाइव मार्केट, ड्यूरिंग ईओडी। मैंने बहुत बार देखा है, पीपल आर टेकिंग पोजिशंस एंड देन अगर वो उनका पोजीशन रॉन्ग हो जा रहा है, मतलब ट्रेड अगेंस्ट हो जा रहा है उनके, दे आर एवरीवेयर, मतलब ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, वो ढूंढ रहे हैं कि कौन उनके व्यू में हाँ में हाँ कर दे, ताकि उनको एक इमोशनली रिलीफ मिल जाए कि उनका जो ट्रेड है वो वापस प्रॉफिट में आ सकता है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, एंड इवेंचुअली आप अपना अकाउंट उड़ा देते हो। So to avoid that thing, have conviction on yourself first. Second, conviction होना is good, but conviction मेरे पास ही होना is like you can say too bad for working as a trader, because you cannot show arrogance or firmness in front of market. Market is supreme. You have to respect the market. If you respect the market, he will give you with time. And once you are into a big league, फिर आपके लिए कंपाउंडिंग ही वर्क करता है। कंपाउंडिंग का मैजिक ही अलग होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर 3 थिंग्स वेरी वेल। और बेसिक मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। कभी इस पे हम जब गणेश चतुर्थी पे जो एक वीडियो रिलीज करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। सो कीप अ नोट ऑफ दिस, ओके, एज ऑफ नाउ। Hima Kiran Kumar, yes, completely okay. Again, Hima Kiran Kumar, you used the word high tech material. What does it mean? See, उसका मतलब था कि देखिए, सबके पास रॉ मटेरियल तो प्राइस ही आ रहा है, भले आप रिटेलर हो, प्रॉप डेस्क हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, ठीक है, आपके पास प्राइस एज अ रॉ मटेरियल सबको मिलता है, सबको मिलता है। अब आगे वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, कोई जैसे रिटेलर्स उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम आपस में बात करें, टेलीग्राम ग्रुप में घूमता रहता है ये चार्ट वो चार्ट, ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, पिवट पॉइंट्स, वो सब ये सब डिस्कस करें जैसे कि हम, ठीक है। उसके बाद प्रॉप डेस्क क्या करता है, प्रॉप डेस्क सिंपल से क्या करेगा, वो प्राइस उठाता है, अपने सिस्टम में डालता है, जो भी उसने अपना ट्रैकिंग डैशबोर्ड बना रखा होगा, उस हिसाब से वो पूरा फॉर्मुलेट होके, कैलकुलेट होके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसको दिख जाता है। फॉर एग्जांपल, उसने जैसे कि रिलायंस का आज उसको 2 चीज़ें चाहिए, रिलायंस का प्राइस चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसको चाहिए कि प्रीवियस क्लोजिंग डे और आज के क्लोजिंग डे में क्या फ़र्क था, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। सो उसने ये 2 चीज़ें अपनी
सॉफ्टवेयर में डाल दी और जो भी उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो भी उसका सेटअप बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उसको एक डैशबोर्ड पे सब कुछ बता देता है. दैट इज बेसिकली प्रॉप डेस्क. ओके, बिकॉज उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मटीरियल मैन पावर है, वो कैपिटल है टू डेवलप दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. दैट इज वाई दे आर प्रॉप डेस्क. पूल ऑफ फंड्स. फिर डीआईएस कौन होते हैं? डीआईएस वो होते हैं जिनके पास प्रारंभ, वो मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती है. ठीक है, डीआईएस होम ग्राउंड, जिनको ग्राउंड रियलिटी पता है, न्यूज़ कब कैसे कहाँ आएगी वो भी उनको जनरली इनसाइडर इन्फो रहता है, राइट. एंड थर्ड, उनके कनेक्शंस नेटवर्क, दे आर very well connected. So price plus news helps them to keep going. और DIs आपको पता है, DIs are not concerned about falls or short, you can say short term shortfalls. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो उल्टा मार्केट गिर रहा है तो और अच्छा है, दे विल बाय मोर. वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड्स. उनको इंटर्न फंड हमसे ही मिल रहा है. हम अपना टैक्स बचाने के लिए प्रीमियम्स भरते हैं या फिर इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम्स भरते हैं. इनडायरेक्टली वो किधर इन्वेस्ट होता है? इन्वेस्ट होता है इनडायरेक्टली कैपिटल मार्केट्स में. ठीक है, या फिर वो लोन के फॉर्म में जाता होगा फॉर एग्जांपल, तो वो भी किधर घूम फिर के आता है? बिजनेसमैन को जाता है. बिजनेसमैन किधर लाता है? बिजनेसमैन का पैसा किधर लगता है? बिजनेस में. इनडायरेक्टली वो किधर लिस्टेड है? स्टॉक मार्केट पे. सो कहीं ना कहीं पे वो पैसा घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही घूम के जाता है वापस. ठीक है, इट्स अ साइकिल. सो अंडरस्टैंड दैट. एंड फिर बचे एफ आई. सो एफ आई हैव एवरी मीन्स ऑफ, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, टर्मिनल्स हैं. सो एवरीथिंग इज calculated based on price structures, patterns, formations. ठीक है, so you can understand by that. So high tech material का मतलब वो था. Ravi ji, hello Ravi ji, good evening, how are you? How to select stocks for next day immediate for 5% move through pivots. अरे यार, see, even a magician cannot do that because stock market is that volatile. Okay, stock market में कब क्या कैसे होगा, you never know. You are just in the flow. You can anticipate, you can make the probabilities, but the chances of that happening always depends upon the trading day itself. So basically जो आपका क्वेश्चन है थ्रू पिवोट्स, इट इज बेसिकली, अगर आप लॉजिकली सोचो कितने टाइप्स ऑफ सीपीआर है? 6 टाइप ऑफ सीपीआर है. असेंडिंग, डिसेंडिंग, दैट इज हायर सीपीआर, लोअर सीपीआर. देन कम्स बुलिश जीपीजेड, बेरिश जीपीजेड, देन कम्स इनसाइड नैरो. तो क्या लगता है आपको कौन सा सीपीआर सेटअप आपको इस तरीके के मूव दे सकता है? डेफिनेटली नैरो इनसाइड. तो योर क्वेश्चन इज आंसर्ड, आई गेस, राइट. नोमन जी, यस, इनसाइड सीपीआर. ओके, आई गॉट दैट. बेसिकली इनसाइड सीपीआर आपका जो पहला क्वेश्चन था, आई गेस, वेयर इट इज. Can the indicator be modified to highlight where inside CPR appears? See, there is no need for that. आपको indicator एक you have got that indicator or the tools formulated according to the adaptability of the public. इसमें custom formulation करना is possible, but we cannot do that due to TV. TradingView है, उनके बहुत ही limited number of inputs लेते हैं वो in a indicator. So काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो टाइम पे to like check it out in terms of you can say in terms of providing everything into one indicator. ठीक है, but yes, we can, I will keep your suggestion or feedback in mind. ठीक है, एक वो भी निकाल देंगे, कोई नहीं. See, we have many things lined up. ये बस खाली थोड़ा goof up हुआ था वो 4-5 महीने का due to all those ban and crap things. उसकी वजह से it took like 4-5 months of my personal time also. So अभी हम वापस ट्रैक पे हैं, तो धीरे धीरे बहुत कुछ आएगा, और ना अभी तक तो बहुत कुछ आ चुका होता बट ठीक है, एनीवेज, व्हाट कैन वी डू. ठीक है, तो बहुत कुछ है विच इज़ कमिंग, सो प्लीज़ बी पेशेंट. टाइम के साथ अगर आप उसको देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट होगा रादर देन मी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग एट वंस. कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको. ओके, सो बी पेशेंट, आएगा सर फेस रिवील. So my name is enough. You don't need my face.
गिरधर जी, ओके, फेस रिवील क्या करना है? We work behind the mask. As in real world, everyone has a mask on them. So हम वर्चुअल में अपने पास मास्क रखते हैं because we do not require any sort of presence in public. Our name works for us. काम बोलता है, ठीक है? Sudeep P, yes, thanks, welcome. Explained Reliance very well. I'm glad that you liked it. Hey Rajesh, thank you Mukul ji. Okay, welcome Rajesh ji. So, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग, ठीक है? अब बात करते हैं, जैसे कि लाइव चैट में अगर किसी और के पास कुछ और क्वेश्चन है तो टाइप कर दो फटाफट, ओके, व्हाइल वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग, अदानी। दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ, पे अटेंशन में। अगर थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो फिर अटेंटिव रहिए थोड़ा, कुछ देर और, टॉलरेट सम मोर टाइम। सी, if you see my chart of Adani, just type a yes or no so that I know there is no lag. Or I know that all of you are on the same page. Just quickly let me know in the chat. Can you see the Adani chart? Everyone? Okay, Girdarji says yes. A Rajesh say yes. ठीक है, so I will consider it as a yes. Okay. ठीक है, yes. So if you see, these are the 6 main listed Adani companies. The 7th is Adani Wilmar, ठीक है? वो अब 7 due to this being a laptop, I cannot place 7 tiles, ठीक है? वरना अदानी विल्मार रह गया खाली। बट अभी अगर आप एक चीज देखें, इधर क्या चल रहा है? अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, एंड देन अदानी टोटल गैस। चलिए इसकी जगह विल्मार ही ला देते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ही किया हो गया, इसकी जगह लेट्स कीप अदानी विल्मार, ब्लैक वाइट एंड गुड, ठीक है? एंड लेट मी मार्क इट टू, and this is your, okay, perfect, ठीक है? now it is looking perfect. अब ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, listen very carefully because it might help you. These blue lines in the 6 chart or the 6 listed companies of Adani, you will see I have marked blue lines all over, ठीक है? ये blue lines क्या है? ये blue lines है the period when the Hindenburg crisis broke out, or when the Adani Hindenburg crisis actually initiated, and we saw Adani stocks falling almost 50 to 70% in just 2 months. That is, ये देखिए सारे कैंडल्स देखिए, जनवरी फरवरी, जैन एंड फेब, ओके, almost 50-60% fall. But if you see, within a couple of months or 2 quarters, how strong the momentum is in terms of price actions. If you see Adani Enterprise, it is still recovering from that big candle of around 50% fall, 50% literally. And अगर आप देखें तो it's now completely double. जब ये कैंडल पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा ना, it is actually double of what you have bought. Okay, for example, have a look here. If I place my cursor here till the recovery of the candle, it is almost double. Okay, so you can see what kind of recovery is that. Similarly goes for Adani ports. Let's say from year to year, it is already 55% up. और अगर मैं इधर से देख लूँ, so it is almost 100% up and fully recovered. जो भी crisis का आया था, fully recovered Adani ports today. That is why you see why it was in momentum today. ठीक है? इतने momentum में क्यों था अदानी? Adani Power again fully recovered, very strong. If you see 24% for this particular month, 17% previous, almost a recovery of how much? Almost twice from bottom. Similarly, अगर आप इधर देखें तो Adani Wilmar is still to recover.
So this can provide a good risk to reward here, या फिर good you can say good investment opportunity seeing the Adani group of companies. Okay, let me mark it the different. देखिए 330 को माइंड में रख के आप एक स्टॉप लॉस लेके इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं इसमें. ओके, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग based on the structure of Adani, nothing else. No technicals, no, because Adani में इस टाइम ना कोई टेक्निकल वर्क करेगा ना कोई फंडामेंटल वर्क करेगा. It is purely inflow outflow as of now. Okay, technical okay, it can work out on some basic scenarios, but if you want to go in terms of inflow outflows, basically you can just go by the logic. रिस्क बहुत ही कम है, 30 पॉइंट्स का रिस्क है फ्रॉम CMP, बट द रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 100 twice your capital. So this is like a good risk. This is worth taking the risk. I feel that, and I am personally into ports. Ports है मेरे पास. I have ports in futures, and I will personally make an investment. I'm waiting for a good confluence in Wilmar. I had power which I squared it off and bought ports, and बस यही है. अभी खाली ports ही है मेरे पास रोल ऑन में. I'm planning for Wilmar and then NTT if it goes into momentum, and उसके बाद some profits of ports and this thing will be invested in this particular invested in Adani Green Energy, because this is also good momentum stock. ठीक है, this is also some good kind of green energy के पीछे सब हैं, so it might just work on that theme, right? So you can keep a check on those stocks which have not yet recovered. They can do good. These 3 stocks have not yet recovered, ठीक है, और on the verge of recovering fully. देखिए ये 2 रिकवर हो चुके हैं, ये 2 जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं, मिडवे में हैं, और ये 2 जो हैं विलमार एंड टोटल गैस, दे आर एट देयर बॉटमिस्ट राइट नाउ. सो इन दोनों में रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क बहुत ही कम है बट रिवॉर्ड्स आर मच हाई. सो विद अ स्मॉल, जो आप पूछ रहे थे, जितने लोगों ने पूछा है कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, तो यू कैन सी वेरी स्मॉल रिस्क, हार्डली 30 पॉइंट्स का रिस्क है. दैट इज समवेयर अराउंड टू 7-10% ऑफ अ कैपिटल. ठीक है, 7 to 10%, yes, 7 to 10% in terms of percentage, or but the reward is almost twice your capital, or even almost twice. Sub twice हो चुके हैं, so this might also go that way. See, let's consider this to be an entry point. अगर हम देखें तो 70 to 80%, और अगर इधर से पकड़ ले तो ऑलमोस्ट ट्वाइस, इधर आके ट्वाइस हो ही जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इन अदानी टोटल गैस, इस कैंडल का भी रिकवरी दे देता है ना, इट इज ऑलमोस्ट 200%, 2x ऑफ योर कैपिटल. ठीक है, सो बाय दिस, देखिए रिस्क बहुत ही कम है, बहुत कम रिस्क है इसमें भी. 550 का स्टॉप लॉस लेके, दैट इज 100 पॉइंट. सिमिलरली लाइक अगेन 10% का स्टॉप लॉस लेके, यू हैव मैसिव रिवॉर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो एक ये चीज़ थी जो मैंने, मतलब ठीक है, इसको अपने तक रख के क्या ही करेंगे. If public makes good money with it, it can be used. But do your own analysis. A disclaimer again. Do your own analysis before investing or putting your hard-earned money into anything. This was uh, just for educational, you can say, purpose. But at the same time, I'm trying to just correlate the moments of inflows and outflows in Adani. ठीक है, so take it as a study project or study homework type of thing, and do your own studies in this particular thing, right? Yeah, so I see some live chat. Baba Ambiga, no, sorry, it's Bala Ambiga. Okay, Tirumalai Kem. Okay, I just got I hope I saw this script name today in my DM also. Tirumalai Kem.
If it was you only who asked me, I don't remember. But someone asked me this about this particular stock today. Okay, let's analyze. Hmm. Okay, let's start from a monthly time frame first. What is the stock doing? Okay, okay. See, so let's firstly mark the basic, you can say, basic support and resistances. This was the previous resistance from which the stock took a downfall. Oh, that's a serious downfall. In 2 years, almost 90% eroded, 31, and then again, good. Okay, so basically this is range bound. ठीक है एक See, I'm marking very basics first so that I also get a good view because this is instant view. So tolerate with me for some time. Okay, so this is basically perfect. We are above the resistance and the second resistance stands somewhere here. So we'll clone this and place this here. Okay, that is somewhere around 300. And yes, now we can proceed with our further analysis. So basically इधर से भी एक up move दिखा है हमें, a consolidation and a break. If you see, ये देखिए, can you see? I'll make this black. I hope you get a very basic understanding of what is going on in this particular stock for a broader time frame. अब नीचे आते हैं. देखिए आप directly can come to 1 hour. ठीक है. So now let's check what the pivot tells us. So see, first of all, if you see, अगर हम देखने जाएं, so what we are observing here, yearly से शुरू करते हैं. So yearly has bearish GPZ, okay, where you can see an instant reversal coming in, okay. Then coming on to quarterly किधर गया? Okay, quarterly has monthly H4. So quarterly has initiative bias present, okay, from this particular level, that is around 220, which exactly stands at the support of the broader time frame. Okay, if you just see month, then see this thing. The first initial resistance, this is where now the price is hovering around, trading acting as a support zone. ठीक है, ये देखिए अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. एंड हु विल प्रोवाइड द सपोर्ट हियर? दैट इज monthly initiative, monthly responsive bias if the price comes till here. So quarterly, yearly mein there are sellers present, responsive sellers. Quarterly it is having bias, initiative bias. Monthly it is getting reverted from initiative responsive sellers, right? And now coming to weekly mein it was price failure or price reversal from weekly H4, that is initiative buyers could not participate. So that means yearly responsive sellers are very strong, joined in by monthly fresh responsive sellers. So we need a dip can come somewhere till this particular zone to retest this particular zone. ये देखिए कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन हो सकता है. Something like this can happen. Initiative sellers can join in, ठीक है, till here. A dip after a breakout, something like this can come in. The stock has to retrace upside, okay, but you can see if the stock is coming down, 220 is to be watched out. And definitely our ultimate, because you also have a healthy dip for the quarterly initiative buyers,
and also it will be joined by monthly responsive buyers. Okay, so you can expect a good momentum here also. Okay, so इधर से dip लेके वो ऊपर ऊपर की तरफ जा सकता है. So basically this is a, I guess, a monthly bullish GPZ if I'm not wrong. Let's check it out. Yeah, it's a bullish GPZ. So breaking this particular GPZ and making this as a resistance will make the stock weak, and we can travel towards this particular level. Okay, that is 180, 180, 185 level. Sorry, 185, 190 level. So I hope this is very much clear, and this is very much simple in terms of price action. ये देखिए, it is almost in a good momentum also. So a basic dip can be expected. If abhi this is only considered to be as a dip. PEMA is also strong. Okay, so it can be a deep dip till L3 220 level. If it is coming here, then a good risk reward trade can be done. With a small risk, you can aim for a new reversal towards the previous swing high and then upside. Okay, I hope you got a broader analysis of how it can be done. Okay. Okay, so here comes Girdhar R. Girdhar R. Thank you so much for Adani. You welcome, Ji. Girdhar R. About natural gas, please. Natural gas, NG. I have recently started commodities also, so I'm also interested to see. I've also not saw NG commodities, natural gas. Okay, we'll quickly see what is natural gas doing on a weekly time frame first. A narrow CPR setup. So NG, yeah, previous week close to 215 can be kept. Below this week, below previous week close, अगर इसके नीचे जाता है तो weak होगा, and above this, breaking this particular CPR can take it further to 221 and then 226 on the upper side. Very simple setup है, ठीक है. If you want to check it out by pivot detector, let's see detector story. Yeah, see, we have fresh buyers here available, 218 with a weekly pivot. So definitely, if we are breaking the CPR for this for this thing, what do you say, for weekly CPR break, then these buyers can join in, responsive buyers, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी for 221 and then 226 towards this particular thing. So this is very simple setup, not to worry about. ठीक है, you can keep a watch on that. Sir, it's just Girdhar. Okay, I saw R, so I thought it. Okay. Thanks, Mukulji. Welcome. Ayush. Okay. Good evening, Ayushi. How are you? Hello, Mukul. I would like to know your view about BSC, Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange. I guess you were holding this stock as far as I remember. You were or you are holding this particular stock, you said, right? So चलिए शुरू करते हैं. Basic resistance was at this particular level, 950, 956. Let's take it out here.
940. Okay. It has a fresh breakout. See, all the broking stocks are doing good because as I said, the broking industry is doing good. Inflows are good. SIP का जो inflows है they are good. Even one stock which I was keeping a track of was CDSL. See, this also has done good. 20% 2 weeks. Even your Angel one, I guess, if I'm not wrong. Yeah, this is also done good. Okay, standing at a resistance zone. All time high के पास ही खड़ा है. A sell zone. ठीक है, तो अगर इसको ये तोड़ेगा तो fresh breakout can be seen in Angel one also. Then comes ठीक है, चलो BSC देखते हैं. CDSL and BSC. Oh, good. Nice. Okay, so BSC is blue sky territory, so there is no point looking into it further. No consolidation as of now. Pure momentum can be seen. So now let's go to participant Detector. So see, basically beautifully, if you can see, it was a yearly breakout. Okay, breach of bearish yearly GPZ, and then joined in by yearly buyers, initiative buyers. Here is the dip, and that would be a dip on PEMA. Yeah, see, dip on PEMA and then fresh breakout. ठीक है, तो इनको बेसिकली ज्वाइन किया आई गेस प्रीवियस वीक में इधर बायर्स होंगे, फ्रेश बायर्स who got yeah, definitely they were fresh buyers from the previous week because we have an expansion in the week. And अभी करंटली बात करें तो आप देखें क्वार्टरली में बायर है, ईयरली में बायर है. ईयरली और क्वार्टरली में तो क्वार्टर में एक एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है. वीकली में एक्सपेंशन हो चुका है, अभी ऑलरेडी चल रहा है. एंड आपका मंथली जो है वो जीपीजेड है, सो बुलिश जीपीजेड. सो बेसिकली मंथली में भी आपके बायर्स प्रेजेंट है. एंड नाउ द ओनली थिंग विच कैन ब्रिंग डाउन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज फ्रेश सेट ऑफ सेलर्स, दैट इज वीकली या डेली. सो वीकली पे अभी द फ्रेश मोमेंटम वुड बी अबव 1400, ठीक है. और एल्स यू कैन सी अ डिप टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जोन, दैट इज सम लेवल, दैट जोन ऑब्वियसली दैट इज 1220 to 1250. इसके बीच में एक डिप आके वापस से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है. बट फ्रेश मोमेंटम वुड लाई अबव 1400, दैट इज फॉर श्योर. इसके बाद कुछ इस तरीके से आके वो वापस नीचे भी आ सकता है, ठीक है, टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पेमा, because it is the gap is too high now, so a healthy dip would be much better for this particular stock. Or else if we get a fresh breakout, ठीक है, इनको ट्रैप मिलता है. इनको ट्रैप कौन करेगा? जस्ट I hope you guys can give me answer of this now. What you have to look out for, just tell me. Anyone, can you tell me what you have to look out for a fresh breakout in this particular stock? Who can take the stock to new highs? Anyone in the chat? Yeah, right. Weekly H3 trap. Sudeep ji says weekly H3 trap. Right, but who will trap them? What is the initiative buyer? Right, initiative buyers, but which initiative buyers? WH4? No, they would be joined in. WH4 would join in. Monthly buyers, they are already in. How can they trap? They are already in. They can provide support. Daily H4, yeah, right. It is daily H4. ठीक है, आपके daily H4 if they are remaining strong, like the same setup which you saw in Nifty today, ठीक है, opening right at H4 and then continuing the momentum and then going above 1400 can bring a good fresh momentum towards 1470 in this particular script, right? So until then you are towards a dip part.
ठीक है, dip can come further till this particular level, and a slight deeper dip can be seen towards your high intensity PEMA 81321. ठीक है, इधर से फिर you have to watch out if we are going above or we are going further on the downside. Simple. I hope Ayushi this was clear. Okay, this was for BSC. This is right. So I hope guys this should be it. हम फिर से कभी लाइव स्ट्रीम ऑन करेंगे. Okay, so I guess tomorrow we also have to get up and see how the market reacts. Discuss तो सब कुछ कर लिया. अब कल we will see how our words are turning into reactions. Okay, so keep a note of everything what we spoke about today, and I hope it was helpful, and thanks for staying by. Thank you all for staying by, being interactive and listening to me patiently. On that note, thank you everyone. Good night. Have a good trading session tomorrow. Thank you guys. Thank you. Thank you Sudeep ji. Thank you Kiran Kumar ji. Thank you Rajesh ji. Thank you Gurdar ji. Thank you Anirudh ji. Chaliye. Good night. My laptop is also drained, I guess. Bye bye. Good night. See you tomorrow.